Okay, Slowly. now you joined. Oh, I joined two, three times. It was telling that nobody is letting you in. Oh, okay. Sorry, I was in the washroom. I was waiting and then I went to Okay, washroom, so I think okay, took okay, 5 minutes. okay. We will start the class, but since I am admitted in the hospital, if they call me for something, you can continue your class. Okay, okay. That's what wanted to start at 5:30, but I know it was not planned. So maybe you had your own schedule. If it's something like this happens, you continue with the class. Okay, you're still admitted. I am admitted for 2 days. Oh my god. And I think we need to start with the module 3 also because by 11 January they want me to submit the next project also. Okay, okay. Wait. I think I shared with you the project for module 4. No, you didn't. Oh no, only one thing was there. Only one code No, was there. module 3 I think I shared earlier with you. I You didn't. told me ML, they are using ML in that. Yeah, that was for the project. I think I didn't see. Wait, let me check if we shared. See. Okay. No, you didn't. You just shared one code, one single code No, only. no, earlier I have shared with you. Earlier, I don't remember you shared earlier also because I Okay, didn't share. okay, okay, no problem. We will go. Okay, let me start. Okay. Mm, Mm. So today we are gonna start with pandas. Okay. Okay, just check this one, please. What? Just check this one. What I have seen. Okay, okay. One Is second. it the same? Okay, what is this solution? Yeah, okay. Okay. This is your okay, yeah, this is your module 3. Oh, this is also machine learning only. Hmm. I will try to share with you model 3. I'm unable to do so. I don't know why. I'll share the classes or else. No issue. Let's start with the class. Yeah. Yeah. Okay. So we were learning about pandas. Okay. Now what is pandas? Okay. So pandas is also like it is a Python library. Okay. Like it's like NumPy only. NumPy and pandas like are we use both in machine learning. Okay. ये तो use होते ही होते हैं. Pandas और NumPy use होते ही होते हैं हमेशा. Especially pandas. If maybe you will not use NumPy one time, but you will always use pandas. Okay. Because pandas is used for everything. Like pandas is a Python library because you use pandas to work with the data. Okay, like storing the data or anything else. Okay, there are many things, so that's why you Python is always used, sorry, pandas is always used in ML projects because you always need, like, there will always be some work with data, right? So that's why we always use pandas. Used to work with data.
तो डेटा कैसा डेटा, अब जैसे डेटा का मतलब है जैसे मार्क्स। समझो मैं एक टीचर हूँ, सो व्हाट विल आई स्टोर? मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। और एनीथिंग एल्स मींस देयर विल बी मेनी। जैसे आपका जो वो था, आपका जो प्रोजेक्ट था उसमें जो डेटा दिया गया था वो किस फॉर्म में था? एक्सेल शीट के फॉर्म में था, ठीक है। सो लाइक data means any data, okay, any type of data. It can be in a file, it can be in Excel sheet, it can be normal, okay. So what pandas does is, pandas help you, it helps in storing data, cleaning the data, analyzing the data, and if you want to change the data also it helps. So basically what is pandas basically helps you to work with data। मशीन लर्निंग में, डीप लर्निंग में हमेशा आप डेटा डेटा तो होगा ही होगा, हर प्रोजेक्ट में डेटा तो होता ही होता है, ठीक है। आपको डेटा के साथ हमेशा काम करना होता है, ठीक है। सो इट ऑलवेज लाइक पांडास इज ऑलवेज यूज, ठीक है। एक बार को नप्पा यूज नहीं होता, बट पांडास जिसमें आप डेटा स्टोर करते हो, क्लीन करते हो, मॉडिफाई करते हो, वो तो यूज होगा ही होगा ना हमेशा, बिकॉज इट Please एग्जिस्ट इन। zoom in the writing, please. ओके, वन सेकेंड। या Yeah. सो इसलिए पांडास यूज होता है, ठीक है। लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ ऑलवेज यूज्ड इन एमएल प्रोजेक्ट, बिकॉज उसमें तो हमेशा डेटा होता ही है एमएल प्रोजेक्ट में, टू हैंडल डेटा, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एन yeah, why do we need data? We can talk about that, okay. Why do we need data? So obviously to store data, handle it, you can modify, you can do anything, okay. So basically if you have a table like this, जैसे समझे आपके पास डेटा है, कुछ ऐसा दिख रहा है वो, ठीक है। Yeah. So if you have data like this using pandas, what you can do with this data, that let me tell you. Using pandas, using pandas, you can first of all you can find average marks, बिकॉज आपको ये दिख रहा होगा ये डेटा के हम पहले तो एवरेज मार्क्स ढूंढ सकते हैं पांडास से बहुत आसानी से। एक लाइन ऑफ कोड यू हैव टू राइट, फाइंड स्टूडेंट्स विद marks greater than 80, you can find that also. Add a new column, or if you want to delete a column or a row, ठीक है। And so yeah, this is why pandas is important, because जैसे pandas इसलिए important है बिकॉज हमारे पास समझेंगे डेटा दिया हुआ है, ठीक है। सो इट कैन एक्चुअली फाइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड हेल्प अस। सो ये डेटा में से पांडास से हम क्या कर सकते हैं, एक लाइन लगेगी बस हमें और हम एवरेज ढूंढ सकते हैं, मतलब एक लाइन ऑफ कोड यू हैव टू राइट एंड यू कैन फाइंड आउट द एवरेज मार्क्स, ओके। यू कैन फाइंड आउट द स्टूडेंट्स विद मार्क्स ग्रेटर देन 80, ठीक है। तो उसके अलावा यू कैन ऐड अ न्यू कॉलम, यू कैन डिलीट अ रो और अ कॉलम, ओके। सो
दिस इज़ वाई वी नीड पांडास, बिकॉज अगर ये हम पाइथन में करते हैं, ठीक है, लाइक एमएल प्रोजेक्ट के लिए अगर हम ये सब पाइथन में करते हैं बिना पांडास के, तो हमें बहुत टाइम लगता। और ऊपर से पांडास बेसिकली एक पाइथन लाइब्रेरी है ना, तो पाइथन लाइब्रेरी में क्या होता है, जैसे नंपाई में इतने सारे फंक्शंस थे आपको याद हो, सेम वे पांडास में इतने सारे फंक्शंस हैं जो हमारा काम आसान करते हैं, ठीक है। हमें कोई कोड ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता, पांडास सब कुछ लिख के मतलब हमें दे देता है सब कुछ करके, तो हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। यू कैन जस्ट नॉर्मली स्टोर डेटा, यू कैन चेंज इट, ठीक है, हाउ एवर यू वॉन्ट यू कैन चेंज इट, यू कैन एनालाइज द डेटा, मतलब एनालाइज मतलब यू कैन नो मोर अबाउट द डेटा एंड उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। टिल हियर यू अंडरस्टूड। सो बेसिकली पाइथन इज यूज टू स्टोर डेटा, मतलब स्टोर एंड एनीथिंग, python is used for things related with data. Okay, next we are going to talk about how to import it. So what you will write, you write import, you will write import pandas as pd, ठीक है। सो इससे क्या होगा, जो है पांडास इंपोर्ट हो जाएगा। अब ये इंपोर्ट पांडास तो नॉर्मल है, ठीक है। हमने पीडी क्यों लिखा, क्योंकि मैंने बोला था निकनेम यूज़ करते हैं, बिकॉज वरना हमें हर बार मतलब कोई फंक्शन कॉल करना है तो हमें पांडास डॉट सम, समझे, ऐसा है कोई फंक्शन, तो हमें पूरा पांडास लिखना पड़ेगा। बट हमने पीडी निकनेम बना लिया तो मुझे पीडी डॉट सम करना पड़ेगा। सो मैं नहीं चाहती मैं ज़्यादा कोड लिखूँ, इसलिए मैं जो है मैं नहीं चाहती मैं ज़्यादा कोड लिखूँ, इसलिए मैंने इसका निकनेम बना लिया, ठीक है। um 1 second. ओके, सो इम्पोर्टिंग इज़ वेरी इजी। सिमिलर वे में हम नमपाई को इम्पोर्ट करते थे ना, इम्पोर्ट नमपाई एस एन पी, तो सेम वे में हम पांडास को भी इम्पोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इट्स नॉट एनीथिंग न्यू। अब हम देखते हैं पांडास में इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या क्या हैं, ठीक है। पांडास में दो इम्पोर्टेंट पांडा के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, या टू मतलब दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, ठीक है, पांडास में। मोस्ट इम्पोर्टेंट पांडास में दो इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या क्या हैं, पहला है सीरीज और दूसरा है डेटा फ्रेम। ओ ये एक साथ लिखते हैं, डेटा फ्रेम, ठीक है। तो अब इसमें फ़र्क जानते हैं, ठीक है, कि सीरीज़ क्या होता है और डेटा फ्रेम क्या होता है। तो सीरीज़ का मतलब होता है कि मतलब जो आपका डेटा अगर एक रो के फॉर्म में दिया हो, ठीक है। मैंने देख नंपाई में भी क्या थी, दो तरीके की एरे थे, एक थी ऐसी, ठीक है, जो एक रो के फॉर्म में दी हो, ठीक है। दूसरी क्या Sophia, थी, या hello. या Hello, Sophia. या They called me for a test. ओके You continue. I will. ओके ओके। Thank you. Yeah, please. Okay, so pandas has there are two most important thing in pandas. The first one is series and the second one is data frame. तो सीरीज में बात कर रही थी कि ये नंपाई 1D एरेज की तरह है, मतलब एक रो की तरह है, ठीक है। और डेटा फ्रेम क्या होता है, डेटा फ्रेम इज बेसिकली यू कैन से लाइक, मतलब जिसमें रोज और कॉलम्स होती हैं बहुत सारे, ठीक है, दैट इज अ डेटा फ्रेम, ठीक है। जो ऐसा दिखता, कुछ ऐसा टेबल जैसा दिखता होगा, ठीक है। इसमें बहुत सारे रोज एंड कॉलम्स होते हैं। अभी मैं दिखाती हूँ डेटा फ्रेम कैसे दिखता है, रोज एंड कॉलम्स होती हैं, ठीक है। तो डेटा आपका मोस्ट प्रोबली ये रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में होता है, बट कभी कभार अगर डेटा छोटा है तो वो ऐसे फॉर्म में होगा, दिस इज रो, रो, अ सिंगल रो,
ठीक है, एंड दिस इज रोज एंड कॉलम्स लाइक अ टेबल, ठीक है, दिस इज अ टेबल। हम एक एक करके बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम सीरीज की बात कर रहे हैं। मैं आपको सीरीज बनाना भी सिखाऊंगी कि आप सीरीज कैसे बनाते हो, ठीक है। पहले हम सीरीज की बात करें तो सीरीज, सीरीज मतलब लाइक वन रो। एज इट लुक्स लाइक अ रो, ठीक है। लुक्स लाइक अ रो मतलब बेसिकली होता क्या है, एक होता है डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम का मतलब पूरी टेबल, ठीक है, ऐसी टेबल, ठीक है। ये होता है आपका डेटा फ्रेम, पूरी आपको ऐसी, मतलब पूरी आपको ऐसी टेबल मिल जाएगी, ठीक है। अब सीरीज क्या होता है, सीरीज, सीरीज बेसिकली होता क्या है कि आप जो है इसी डेटा फ्रेम में से एक कॉलम उठा लो, ठीक है, उसी को हम सीरीज कह देंगे, ठीक है। मतलब बेसिकली सीरीज दिखती कैसे, पहले तो मैं बता दूं, ऐसे, इसी कॉलम को उठा के सीधा कर दिया तो वो ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट सीरीज इज। या तो आप कह देते हैं बेसिकली एक रो की जैसे दिखती है, ठीक है, वेरी बेसिक, ठीक है। मतलब ये अभी अभी ऐसे दिख रही है, जब हम लिखेंगे कोड में तो ये ऐसे दिखेगी, लेकिन जब हम आउटपुट, आपको कर रही हूँ मैं, क्या है ये, तो मैं आपको कर देती हूँ ना, आप कर दो। मेरे पास कैश नहीं है, नहीं ऑनलाइन, ऑनलाइन, अच्छा। ओके, सो ओके, सो बेसिकली सीरीज क्या होती है वो मैं आपको कोड में समझाऊंगी कि हम मतलब उसका एक्चुअली डेफिनेशन क्या होता है। थिंक ऑफ सीरीज एज वन कॉलम, ये होता है सीरीज की डेफिनेशन कि सीरीज लाइक थिंक ऑफ इट एज वन कॉलम, ठीक है। अब इसे ऐसा बोलते क्यों हैं वो आप सोच रहे होंगी, सो मैं आपको कोड में दिखाऊंगी एक्चुअली ये चीज़, ठीक है। तो सीरीज क्या होता है, एक कॉलम होता है, एक पूरी टेबल का एक कॉलम होता है, उसे तुम सीरीज के दोगे। एक पूरा टेबल मतलब विद मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स, उसे हम डेटा फ्रेम कहते हैं। तो अभी हम डेटा फ्रेम के बारे में पढ़ेंगे, बट फर्स्ट हम ये देखते हैं कि सीरीज बनाते कैसे हैं कोड में, ठीक है। सीरीज का मतलब तो समझ में आ गया, मतलब क्योंकि बेसिकली सीरीज और डेटा फ्रेम में आप डेटा ही तो स्टोर कर रहे हो, ठीक है। तो डेटा काफ़ी तरीके, काफ़ी मतलब दो तरीके दिए हैं पांडाज ने, क्या दो तरीके से डेटा स्टोर कर सकते हो। एक, अगर आपका डेटा छोटा है तो आप एक सीरीज में स्टोर कर लो, ठीक है, वन कॉलम, लेकिन उसमें सिर्फ। और अगर आपका डेटा बड़ा है, विच ऑब्वियसली रियल वर्ल्ड में हमेशा डेटा डेटा फ्रेम में ही स्टोर होता है, ठीक है, बिकॉज डेटा बड़ा होता है। तो अब हम देख रहे हैं कि कैसे करते हैं, मतलब सीरीज कैसे बनाते हैं। तो हम सबसे पहले लिखते हैं इम्पोर्ट पांडास एज पीडी, ठीक है, यहाँ तक लिख दिया। उसके बाद मैं अभी एक सीरीज बनाने वाली हूँ मार्क्स नाम की, मार्क्स इज इक्वल टू पीडी। पीडी मतलब क्योंकि हम निकनेम पीडी लिया तो पीडी डॉट सीरीज लिखना है बस, ठीक है, बस इतना सा राउंड ब्रैकेट में वो पास करने अपने मार्क्स, ठीक है। तो इट्स वेरी सिमिलर टू अ नम्पाई 1D एरे, ठीक है, इट इज़ वेरी वेरी सिमिलर। नम्पाई में एरे जो वन डायमेंशन वाली थी वो भी ऐसी ही थी, ठीक है। सो इट इज़ क्वाइट सिमिलर, बट जो है इसमें ये फ़र्क है, ये एक टेबल का कॉलम होता है बेसिकली, जैसे ये पूरी टेबल है उसका एक कॉलम सीरीज होता है, ठीक है। अभी आप नहीं समझ पा रहे होगे कि कैसे, ये तो एक रो लग रही है बेसिकली, अभी रो लग रही है ना आपको देखने में कोड में, ठीक है। और फिर आप प्रिंट करा दोगे मार्क्स को, तो आपको जो आउटपुट आएगा वो मैं गूगल कोलैब में ही दिखाना चाहती हूँ, ठीक है। तो लेट्स गो टू गूगल कोलैब।
तो मैं लिखूंगी import pandas as pd. oh I wrote pandas की spelling wrong. ओके एक बार ये हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, सीरीज बनाएंगे, ठीक है। सीरीज बनाने के लिए से मुझे मार्क्स नाम की सीरीज बनानी है। तो मैं लिखूंगी पी डी डॉट सीरीज, ठीक है, राउंड ब्रैकेट में अपना जो भी पास करना है 1 2 3 4 5 मार्क्स है, ठीक है। अब मैं इसे प्रिंट कराऊंगी तो आपको भाई, आप अभी तक ये सोच रहे होगे कि ये तो एक रो की तरह लग रही है, ठीक है। रो कौन सी होती है, लेटी वाली रो होती है, और जो स्टैंडिंग होती है वो कॉलम होता है, ठीक है। तो अभी आपको ये रो लग रही है ना, तो मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ कि ये टेबल का कॉलम है, ठीक है। लेट्स सी, क्योंकि इसका जो आउटपुट आता है वो ऐसे आता है। ये सीरियल नंबर है, इग्नोर दिस, ओके। ये सीरियल नंबर है। सीरियल नंबर जो भी होता है ना सब में, सीरियल नंबर बोल दो, इंडेक्स बोल दो, आप कुछ भी बोल दो, तो ये इसमें प्रिंट होके आता है, ठीक है, तमीज़ से, ठीक है। बिकॉज हर टेबल में आप देखोगे सीरियल नंबर होता ही है, तो इसमें भी इसलिए दिया जाता है। और ये देखें, ये हमारे एक कॉलम आ गया प्रिंट होके। सो इसलिए हम इसे बोलते हैं सीरीज, क्योंकि जो है ये एक मतलब हम सीरीज को क्यों बोलते हैं, एक कॉलम है, हमेशा एक कॉलम सुनेंगे आप, ठीक है। लाइक सीरीज इज ऑलवेज वन कॉलम। तो हम ऐसा क्यों सुनते हैं, क्योंकि प्रिंट होके एक कॉलम की तरह आता है ना, आउटपुट एक प्रिंट लाइक लुक्स लाइक अ कॉलम, ठीक है। एंड विद एन इंडेक्स, देखें ये पूरा इंडेक्स भी है, इंडेक्स कह दो या सीरियल नंबर जो आप लिखते हो ना टेबल बनाते वक्त वो, ठीक है। तो इट लुक्स लाइक अ कॉलम, सो इसलिए हम इसे कॉलम कहते हैं। यहाँ ये रो लग रही है, लेकिन जब ये प्रिंट होके आती है इट लुक्स लाइक अ कॉलम, वन कॉलम ऑफ अ टेबल, ठीक है। तो हम उसे कहते हैं सीरीज। तो जो ये जो 0 1 2 3, मैं नंबर्स चेंज कर देती हूँ एक्चुअली, अगर आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, अब मैंने नंबर्स चेंज कर दिए, अब इट विल बी बेटर। तो अब आप देखोगे इसमें जो है ये जो देखिए, अब ये जो 0 1 2 3, ये क्या आपका इंडेक्स कह दो, ठीक है, सीरियल नंबर कह दो एक टेबल का, ठीक है। और ये क्या है, ये आपके एक एक कॉलम है पूरा, ठीक है। अगर आपको इसमें से जैसे ठीक है, आपको इसमें से अगर वैल्यूज प्रिंट करानी है एक एक करके, तो आप लिखोगे प्रिंट, ठीक है, ब्रैकेट में मार्क्स। जैसे आपका आपको मुझे जैसे पूरी पूरी कॉलम नहीं प्रिंट कराना, ठीक है। मुझे समझो सिर्फ 64 प्रिंट कराना है फॉर एग्जांपल। ये तो मैं क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी प्रिंट मार्क्स 0 1 2, मैं लिखूंगी ब्रैकेट में 2, ठीक है। तो सिर्फ 64 प्रिंट होके आएगा। मैं लिखूंगी 3, तो क्या प्रिंट होके आ रहा है 40, ठीक है। तो बेसिकली दैट इज व्हाट इट मीन्स। अब हम मतलब मार्क्स प्रिंट कराना तो बड़ा ही आसान है, लिस्ट में भी ऐसे ही होता है, एरे में भी ऐसे होता है, सीरीज में भी सेम तरीका है। मतलब कोई भी नंबर प्रिंट कराने का, ये ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दो, ठीक है। सो दैट इज़ वेरी इजी। हम चाहें तो वैसे पता है, हम चाहें तो हम जैसे मैंने इंडेक्स, मतलब इंडेक्स खुद से आ रहा था ना 0 1 2 3 से, जब मैं मार्क्स प्रिंट करा रही थी, तो वो इंडेक्स हमने तो नहीं बनाया ना, वो खुद से आ रहा था, ठीक है। ये जो इंडेक्स है, इंडेक्स के दो से, ये खुद से आ रहा था, ठीक है। मैं चाहूँ तो मैं खुद से भी बना सकती हूँ इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं लिखूँगी इंडेक्स इक्वल टू, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में अपना क्या लिखना है, समझो मुझे ए कॉमा बी कॉमा सी, मुझे 1 2 3, यहाँ जो है 0 1 2 3 है ना, यहाँ मुझे ABCD लिखना है, ठीक है, CD। तो उसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं लिखूँगी मार्क्स ब्रैकेट में ई, ऐसा ऐसा एरर, प्रिंट मार्क्स ऑफ ई। ओ सॉरी, ये मैं हटाने भूल गई, ऐसे लिखना होता है आई थिंक। ये इसी लाइन में लिखना होता है ना, और यहाँ ब्रैकेट बंद करना पड़ता है, ओके।
देखें तो 98 आ गया, और मैं पूरा ही प्रिंट करा सकती हूँ बेसिकली। देखो बेसिकली ये इंडेक्स क्या मैंने आप खुद से बना दिया। ठीक है, तो आपने क्या करा, सीरीज में आप ये भी दे सकते हो कि आपको क्या कॉलम क्या आपकी वैल्यूज़ हैं, ये तो देना ही देना है। ये इंडेक्स ऑप्शनल होता है, आप इंडेक्स दे सकते हो, आपकी मर्जी है देना। अगर आपको इधर कोई अच्छा कस्टम इंडेक्स चाहिए तो आप दे सकते हो, वरना 0 1 2 3 प्रिंट हो जाएगा अगर आपने ये नहीं दिया है, ठीक है, बाई डिफ़ॉल्ट। ठीक है। ओके तो कस्टम इंडेक्स हो गया, सीरीज का मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ, देन वील मूव ऑन टू डेटा फ्रेम्स। तो बेसिकली सीरीज होता है क्या, सीरीज क्या होता है, सीरीज एक दिख मतलब जब हम कोड में लिख रहे होते हैं तो वो आपको लगेगा कि यार ये रो की तरह दिख रहा है, ठीक है। इधर जैसे मैं ये हटा देती हूँ अभी, चले रहने दें। जैसे इधर जब मैं सीरीज बना रही हूँ तो ये मुझे रो की तरह लग रहा है, ठीक है। बट ये एक्चुअली आउटपुट में जैसे एक कॉलम की तरह दिखता है, ठीक है। तो थिंक ऑफ सीरीज एज वन कॉलम, ठीक है। एक टेबल में से अगर आप एक कॉलम निकाल दो अलग तो वो सीरीज हो जाती है, ठीक है। हम इसमें कोड कैसे लिखते हैं वो मैंने यहाँ दिखा दिया, ये इंडेक्स वाला ऑप्शनल है, ठीक है। आप इसे लिखो ना लिखो आपकी मर्जी, कुछ भी लिख सकते हो आप इंडेक्स में, बट आपकी मर्जी है वो आपको लिखना है नहीं लिखना। अगर नहीं लिखोगे तो फिर क्या आएगा, अगर आप नहीं लिखोगे तो फिर कैसे प्रिंट होगा, तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट 0 1 2 3 प्रिंट हो जाते हैं, ठीक है, इंडेक्स। क्योंकि टेबल का इंडेक्स होता ही होता है, ठीक है, इसलिए इंडेक्स देता है। बट ये टेबल नहीं है, बट लाइक एक कॉलम का भी तो इंडेक्स होता ही है, तो इसलिए इंडेक्स देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो ये सीरीज है। ना अब हमने सीरीज के बारे में बात कर लिया, हमने बात कर लिया सीरीज में अगर आपको अपना इंडेक्स डालना हो वो भी कैसे कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेटा फ्रेम। सो डेटा फ्रेम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, बिकॉज डेटा फ्रेम ही हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओके सो लेट्स मूव ऑन टू पांडास, ठीक है। सॉरी पांडास के डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन पांडास।
सॉरी सॉरी। ओके, डेटा फ्रेम क्या होता है? इट इज़ लाइक अ टेबल, टेबल ही मान लो। ठीक है। सो जैसे बेसिकली कोई भी टेबल है, जैसे मैंने आपको अभी ऊपर एक टेबल दिखाई थी। कहाँ गया? ये वाली, ये नेम एज और मार्क्स वाली, ये एक टेबल है। ठीक है, तो इसे ही मान लो आपकी ये एक डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम यही होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसे बनाना भी इतना मुश्किल नहीं है, मैं आपको अभी कोड में दिखाऊंगी। ठीक है, लेट मी मेक अ डेटा फ्रेम। कोडिंग कैसे लिखते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हम लिखते हैं डेटा इज इक्वल टू नेम, यही लिख देते हैं नेम। ठीक है, लिखा। उसके बाद मैंने लिखा नेम क्या क्या है। ठीक है, समझो नेम है आयशा, कॉमा सारा, कॉमा कुछ। ठीक है, ये एक कॉलम हो गया। फिर मैं कॉमा लगाऊंगी, फिर मैं दूसरा कॉलम लिखूंगी। पहले कॉलम का नाम लिखते हैं ऐसे, फिर एक लिस्ट पास करते हैं जिसमें आप जो है अपने कॉलम की वैल्यूज बताते हो। ठीक है, फिर तीसरे कॉलम के लिए सेम वे मैं पहले यहाँ लिखूंगी मार्क्स। ठीक है, और फिर मैं एक लिस्ट पास करूंगी जिसमें मैं मार्क्स बताऊंगी। तो ये किसके मार्क्स हैं? ये आयशत सारा कुलसुम की एजेस हैं और ये उनके मार्क्स हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ बंद कर दूंगी ब्रैकेट। ठीक है, ये हमारा डेटा फ्रेम होता है। अगर मुझे प्रिंट कराना है तो मैं लिखूंगी पी डी, ये डेटा फ्रेम का मैंने नाम दे दिया डी एफ। पी डी डॉट मैं लिखूंगी डेटा फ्रेम, ब्रैकेट में मतलब मुझे डेटा फ्रेम बनाना है तो मैं पी डी डॉट डेटा फ्रेम लिखूंगी, ब्रैकेट में अपना डेटा पास कर दूंगी। फिर मैं लिखूंगी प्रिंट डी एफ। बेसिकली आप सोचोगे कि यहाँ मैंने अलग से डेटा बनाया फिर उसको इसमें पास क्यों किया, तो मतलब मैंने यही क्यों नहीं बनाया प्रिंट डॉट डेटा फ्रेम में, बिकॉज सीरीज में हम पी डी डॉट सीरीज करके उसी में बना दे रहे थे। बिकॉज सिंस डेटा कभी कभार बहुत बड़ा होता है तो हम उसे अलग से लिख देते हैं, फिर उसे यहाँ पास कर देते हैं जैसे मैंने अभी किया है। ठीक है, जस्ट सी एंड अंडरस्टैंड। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जस्ट सी द कोड एंड अब हम आगे बढ़ेंगे तो अब हम ये कोड में लिख के देखेंगे कि ये कोड में कैसा लगता है। ठीक है, सो क्या लिखा था मैंने पहले तो, ओके हाँ, मार्क्स के बारे में। सो पहले तो हम इंपोर्ट करें। अच्छा, इंपोर्ट तो मैं ऊपर कर चुकी हूँ। ठीक है, इंपोर्ट मैं ऊपर कर चुकी हूँ, तो अब मैं डायरेक्ट शुरू करूँगी नहीं, डेटा इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आएगा नेम, मैं कैपिटल में लिख देती हूँ नेम। ठीक है, फिर आप कॉलन लगाओगे, फिर आप एक लिस्ट पास करोगे जिसमें नेम्स होंगे। ठीक है, नेम्स क्या रखूँ, क्या रखा था मैंने नेम्स, आयशा, कॉमा सारा, कुलसुम। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ कॉमा लगाऊंगी, सॉरी, कॉमा लगाऊंगी और मैं यही लिख सकती हूँ या मैं अगली लाइन में लिख लूँ, एक ही चीज़ है। ठीक है, समझो मैं लिख रही हूँ एज। अब मैं एक लिस्ट पास करूंगी, उसमें मैं एज डालूंगी 15, 17 और 19। ठीक है, ये एजेस हो गई, कॉमा लगाऊंगी। नेक्स्ट लाइन में या उसी लाइन में भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। नेक्स्ट लाइन में लिखने से थोड़ा तमीज़ का आपको लगता है। और क्या था, ये था, और क्या चीज़ थी, मार्क्स। हाँ, मार्क्स। मार्क्स मैं लिस्ट पास करूंगी, लिस्ट में मार्क्स पास करूंगी 86, 75 एंड
ठीक है, तो ये इनके मार्क्स हो गए। अब मैं क्या करूँगी, अभी तक ये सिर्फ हमारा डेटा है, ठीक है, अभी ये डेटा है। अभी मैं इसे डेटा फ्रे मतलब ये डेटा है, नॉर्मल डेटा है, ठीक है, अभी कोई डेटा फ्रेम मैंने नहीं बनाया। ठीक है, ये नॉर्मल हमारा जो डाटा होता है, जो समझो आपको अपने प्रोजेक्ट के लिए ये डेटा मिला है, ठीक है। अब आप उससे डेटा फ्रेम कैसे बनाओगे? आप डेटा फ्रेम बनाने के लिए कोई वेरिएबल नेम लोगे, मैंने डीएफ लिया है। फिर आप लिखोगे डेटा डेटा फ्रेम, ठीक है, आप ब्रैकेट में पास करोगे अपना डेटा, जो डेटा आपका होगा वो आप अपना ब्रैकेट में पास करोगे, ठीक है। और फिर प्रिंट डीएफ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारा डीएफ नाम का एक डेटा फ्रेम बन गया। वेट, मैं थोड़ा नीचे कर लूँ। तो ये देखें, प्रिंट डीएफ करके डेटा फ्रेम नाम का हमारे पास पहुंच गया, ठीक है। अब आई होप यू अंडरस्टैंड कि हम इसे क्यों कह रहे हैं कि ये रो है या कॉलम है। आई होप यू रियली अंडरस्टैंड, बिकॉज इसमें बेसिकली डेटा फ्रेम लुक्स लाइक अ टेबल एंड डेटा फ्रेम इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। एंड आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज दिस। मैं एक और डेटा बना के दिखाती हूँ, इसे मेरे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा, लेकिन लेट मी ट्राई टू मेक अनदर डेटा फ्रेम। कोई भी नाम ले सकते हो, मैं नाम डेटा ही ले रही हूँ, ठीक है। और मैं बनाऊंगी नेम, ओके, पहले तो नेम ही। जैसे मैं लिख रही हूँ नेम आयशा मरियम शर्मा, ठीक है, ये नाम हो गया। उसके बाद में इनकी क्या लिखूँ मैं, इनका इनकी हाइट लिख रही हूँ, ठीक है, मैं हाइट। डेटा किसी भी चीज़ के बारे में हो सकता है ना। हाइट इनका है 5'4", 160 सेंटीमीटर, 155 एंड 138, ठीक है, चलो। अब मैं एक और चीज़ डाल रही हूँ, इफ आई वांट हस्बैंड्स नेम भी डाल देती हूँ, हाँ। तो इसमें मैं लिखूँगी क्या नाम हो सकता है, इब्राहिम, हम्म, ठीक है। तो ये हस्बैंड के नेम्स हो गए। अब अगर मैं इसे प्रिंट कराना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ एक वेरिएबल लूँगी, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं आप। मैं क्या लूँ, मैं डीएफ ही ले लेती हूँ, ठीक है। फिर मैं लिखूँगी यहाँ पी डी डॉट डॉट लगाऊंगी, फिर मैं डेटा फ्रेम लिखूँगी, और फिर ब्रैकेट में अपना डेटा पास कर दूँगी, जिस डेटा का मुझे डेटा फ्रेम बनाना है, ठीक है। तो अब मैं प्रिंट करूँगी इसको, डीएफ को, तो अब देखते हैं क्या डेटा फ्रेम बना। तो हमारा डेटा फ्रेम बना क्या नाम का, डीएफ नाम का, ठीक है। देखें, एज यू कैन सी वेरी क्लियरली बन गया है। सो दिस इज व्हाट अ डेटा फ्रेम इज। तो ये बन गया हमारा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज इसमें जो है, मैं एक बार बता देती हूँ, जो हॉरिजॉन्टल वाला होता है वो हमारा होता है रो, ठीक है। जो वर्टिकल होता है वो हमारा होता है कॉलम, ठीक है। जैसे ये हमारी रोज है, ये हमारी एक पहली जीरोथ रो है, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट रो है, और ये हमारी सेकंड रो है, ठीक है। उसके बाद हमारा कॉलम कौन सा है, ये नेम वाला एक कॉलम है, हाइट वाला एक और कॉलम है, हस्बैंड्स नेम वाला एक और कॉलम है, ठीक। इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स जो है ये वाला 0 1 2, इंडेक्स बेसिकली रो नंबर होता है, ठीक है। और इसमें और तो कुछ नहीं है वैसे तो। सो मूविंग ऑन, अब हम बढ़ते हैं डेटा फ्रेम के कुछ ऑपरेशंस से, ठीक है, जो मैं एक बड़े डेटा पे आपको करके दिखाऊंगी आज, ठीक है। सो डेटा फ्रेम के ऑपरेशंस भी काफ़ी सारे होते हैं। जस्ट अ सेकेंड।
Just give me 2 minutes. Okay. So let's talk about the panda के operations के basic data frame operations. Okay. Basic data frame के operations जो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगी. Operations ठीक है. So पहला वाला कौन सा है? View data. व्यू डेटा करने के लिए मैं लिखूंगी df. समझे मेरा df नाम का एक डेटा फ्रेम है. ठीक है, मैं उसमें लिखूंगी df डॉट हेड. तो इससे क्या होगा? इससे जो बड़ा सा डेटा है उसकी पहली 5 रोज प्रिंट होके आ जाएंगी. फर्स्ट 5 रोज. ठीक है, तो इसलिए बड़ा सा डेटा लूंगी बिकॉज हमारे डेटा में तो 2-3 रो ही हैं जो मैंने बनाया. बट तो मैं बड़ा सा डेटा लूंगी अभी देख के. ठीक है, एंड आई विल शो यू कैसे वर्क करता है. ठीक है. लेट्स मूव ऑन. एक और चीज़ होती है df डॉट टेल. इससे क्या होता है? लास्ट 5 हो जाती है. बाय डिफ़ॉल्ट 5 होता है. ठीक है, अगर आपको चाहिए कि 3 रो हो तो यहाँ आप df डॉट हेड के अंदर 3 लिख दो, 3 रोज आ जाएंगी प्रिंट होके. लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट 5 होता है. अगर आप कुछ ना लिखो, अंदर खाली छोड़ दो, तो 5 आ जाता है प्रिंट होके. ठीक है, लेट मी शो यू इन द कोड ओनली. वहीं ज़्यादा अच्छा लगता है. लेट मी सी इफ आई हैव गेट हब पे मेरा कोई कोड. ये डेटा तो छोटा है. Okay, this data is big. Okay, let me take this data. जैसे मैं इधर लिखूँगी पूरा डेटा मैंने अपना डाला. तो ये डेटा है अबाउट इंग्रेडिएंट्स. ये इंग्रेडिएंट्स हैं और उनको कितना टाइम लग रहा है कुक होने में. ठीक है, सो अब ये ऐसा दिखेगा. इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है बट ऐसा सही लग रहा है. इंग्रेडिएंट नंबर 2 को, मतलब इंग्रेडिएंट नंबर्स के फॉर्म में. ठीक है, इंग्रेडिएंट नंबर 2 को 7 मिनट लग रहे हैं कुक होने में. इंग्रेडिएंट नंबर 3 को 10 मिनट. और ये तो इंडेक्स है हमारा 0 1 2 3 4. इस पर ध्यान नहीं देना है. इंग्रेडिएंट्स और कुकिंग टाइम का है. ठीक है, अब मुझे जो है इसमें अगर मुझे पहली 5 रोज प्रिंट करानी है तो मैं क्या लिखूंगी? df डॉट हेड. df क्यों लिया? जो हमारा नाम है डेटा फ्रेम का, क्या नाम है? मैंने df लिया है ना इधर. मोस्टली df ही लेते हैं. तो df जो नाम है वो डेटा फ्रेम का, वही हमें यहाँ लेना है. तो मैंने df लिखा तो df डॉट हेड ही लूँगी मैं यहाँ. तो देखिए df डॉट हेड से क्या हो रहा है? पहली 5 रोज प्रिंट होके आ जा रही हूँ. वेरी क्लियरली वी कैन सी. ठीक है, 0 1 2 3 4 पहली 5 रोज. अगर मैं यहाँ लिखूँ 4, ठीक है, मैंने अगर 4 पास किया तो देखिए अब 4 रोज प्रिंट होके आई. अगर मैं यहाँ लिखूँगी 10 तो 10 रोज प्रिंट होके आएंगी. ठीक है, सो df डॉट हेड अगर आप खाली छोड़ते हो तो वो बाई डिफ़ॉल्ट 5 रोज प्रिंट करता है. ठीक है, अगर आप जो है कोई नंबर अंदर डालोगे तो वो नंबर प्रिंट करेगा. ठीक है, अब मैं df डॉट टेल दिखा देती हूँ. ये लास्ट की 5 रोज दिखाता है बाय डिफ़ॉल्ट. ठीक है,
लास्ट की 5 रोज आपको मिल गई बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। 29 थी हमारी लास्ट रो, तो आपको लास्ट की 5 रोज मिल गई बाय डिफ़ॉल्ट। अगर मैं यहाँ फोल्ड पास कर दूँ तो जो है अब लास्ट की 4 रोज मिल जाएंगी। तो हेड और टेल बहुत सिमिलर है, ठीक है। तो हेड में क्या होता है बेसिकली, जो आपका पाइथन डीएफ डॉट हेड है, उसमें पहली 5 रोज प्रिंट होके आ जाती है बाय डिफ़ॉल्ट। एंड अगर जो है आप डी एफ डॉट टेल करोगे तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट 4 रोज प्रिंट करके आ जाती है। आपको अगर आपको अंदर कोई नंबर पास करना है तो आप पास कर सकते हो। हेड का मतलब है बेसिकली शुरू की कुछ रोज प्रिंट होके आ जाती हैं, ठीक है। और टेल से जो है एंड की लास्ट 5 रोज, ठीक है। और भी ऑपरेशन हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। सेकेंड वाला होता है डी एफ डॉट, वैसे अभी तो टाइम है, शेप, ठीक है। डी एफ डॉट शेप में क्या होता है, जब आप ये लिखोगे वो आपको ऐसा रोज कॉमा कॉलम्स बता देता है, ठीक है। ठीक है, रोज कॉमा कॉलम्स, तो वो भी देख लेते हैं यहीं कि कितनी रोज हैं और कितनी कॉलम्स हैं। क्योंकि हम ये यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि कभी कभार डेटा हमारा बहुत बड़ा होता है तो हमें उसका शेप जानना है कि वो कितना बड़ा है, ठीक है। तो हम इसलिए ये यूज़ करते हैं। देखिए हमारी 30 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। हमारी जो डेटा डेटा है फ्रेम है उसमें 30 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। अब हम कॉलम नेम्स भी प्रिंट करा सकते हैं। हम लिखेंगे डी एफ डॉट कॉलम्स, तो कॉलम नेम्स प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे कॉलम नेम्स क्या हैं, इंग्रेडिएंट्स और कुकिंग टाइम। हम क्या कर सकते हैं, और भी चीज़ें कर सकते हैं। हम डी एफ डॉट इन्फो भी कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे जो है हमें ये पता चल जाता है कि आपके कुछ नल नल मतलब तो इसमें हमें ये पता चल जाता है बेसिकली कि आपके कितने मतलब इसमें ये दिखाता है कि नल है या नहीं। नल का मतलब कि नल मतलब कहीं आपने कभी कभी ये होता है कंपनीज में, जो आप रियल वर्ल्ड डेटा जब आप एक्सेस करने जाते हो तो समझो एयरटेल की कस्टमर्स की लिस्ट है। अब एयरटेल के पास एक कस्टमर का पूरा डेटा नहीं है, तो वो एक कॉलम में नल लिख देगा, ऐसे नल। नल का मतलब होता है कुछ नहीं, बेसिकली नल मीन्स कुछ नहीं, ठीक है। तो मैं नल लिखते हैं, ये खाली भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। सो खाली छोड़ना मीन्स नल। अब इसमें होता क्या है नल में, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली नल लिखते कैसे हैं खुद से, बिकॉज मैंने कभी लिखा नहीं है अपने डेटा में। लेट मी सी दैट। बट हम ये यूज़ क्यों करते हैं, मतलब हम इन्फो डी एफ डॉट इन्फो इसलिए यूज़ करते हैं, हमें ये चेक करना है कोई जो है वो तो खाली नहीं। अच्छा नन लिखते हैं, ओके। नन लिखते हैं, नन का, हाँ मुझे लग ही रहा था नन लिखते हैं। सो नन का मतलब होता है नल, ठीक है। तो वो आपके डेटा में ऐसे आ जाएगा, देखो एन ए एन करके, ठीक है। आप देखोगे तो एन ए एन आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम एक एक करके, मतलब आपका डेटा समझो 10,000 लाइन्स का है, तो आप एक एक करके थोड़ी देखोगे कि आपके डेटा में कहीं मतलब कहीं कोई वैल्यू मिसिंग तो नहीं है। इसलिए आप डी एफ डॉट इन्फो करोगे, ये जब आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो देखो इसमें 30 रोज थी और 30 की 30 नॉन नल है, लेकिन इसमें सिर्फ 29 नॉन नल है, मतलब एक वैल्यू नल है। नल का मतलब एक वैल्यू मिसिंग है, ठीक है। तो हमें वो मिसिंग वाली रो को हटाना पड़ता है, ठीक है। वो मिसिंग वाली रो को हमें एक्चुअली हटाना पड़ता है, इसलिए जो है क्या कहते हैं उसे दिया नहीं गया है, क्योंकि हमें जो है हमेशा मिसिंग वैल्यूज़ को हटाना पड़ता है अपने डेटा से, तब हम चेक करते हैं डी एफ डॉट इन्फो, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा डी एफ डॉट हेड, डी एफ डॉट टेल, ठीक है, ये बहुत क्लियर होगा। डी एफ डॉट शेप पढ़ा, शेप प्रिंट कर देता है। डी एफ डॉट कॉलम्स और डी एफ डॉट इन्फो। अब इन्फो क्या करता है, इन्फो बेसिकली चेक करता है कि कहीं कोई नल वैल्यूज़ तो नहीं है मेरे उसमें। अगर नल वैल्यूज़ हैं तो फिर क्या करेगा वो जो है वो बता देगा कि आपकी कोई नल वैल्यूज़ तो नहीं है, ठीक है। अगर आपकी नल वैल्यूज़ हैं तो आपको उसे हटाना पड़ता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सेसिंग डेटा, कि आप एक्सेस कैसे करोगे डेटा को, ठीक है। तो ये मैं आपको भी बता चुकी हूँ, वैसे फिर मैं बताती हूँ। एक्सेसिंग डेटा, रोज का तो मैं आपको बता ही चुकी थी, बट मैं फिर से बताती हूँ। एक्सेसिंग डेटा में पहला आता है एक्सेस अ कॉलम। कॉलम एक्सेस कैसे करते हो, आपका समझो कोई भी कॉलम है तो आप लिखोगे डी एफ ब्रैकेट में मार्क्स। जैसे मैंने
रुको पहले मैं आपको डेटा फ्रेम लिख देती हूँ वरना ये अजीब लगेगा। यहाँ कहीं लिखा था ना मैंने ऊपर। ओके, तो हम ठीक है, एक्सेस एक्सेस अ कॉलम क्या है? एक्सेस अ कॉलम, कॉलम कैसे एक्सेस करते हैं? तो जैसे आपको पता ही है कि कॉलम नेम्स, कॉलम कौन कौन से हैं? एक कॉलम है नेम करके, ठीक है, एक कॉलम है एज और एक कॉलम है मार्क्स, और ये जो अंदर लिस्ट में है ये इन कॉलम की वैल्यूज़ है, ठीक है। अगर हमें मुझे समझे मार्क्स एक्सेस करना है तो मैं लिखूंगी डीएफ और मैं ब्रैकेट में लिख दूंगी मार्क्स। इससे प्रिंट हो जाएगा। अब प्रिंट लिख दो आप, प्रिंट भी लिख देना चाहो तो, बिना प्रिंट के भी हो जाएगा आई थिंक। तो आप प्रिंट लिखोगे तो इससे क्या होगा, डीएफ ब्रैकेट में आपने मार्क्स लिखे तो मार्क्स वाला कॉलम का वैल्यू आपको दिख जाएगा, ठीक है, बहुत क्लियरली। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि अब तीनों कॉलम नहीं प्रिंट कराने, किसी एक कॉलम पे फोकस करना है तो उसके लिए यूज होता है, ठीक है। एक्सेस मल्टीपल कॉलम, मल्टीपल कॉलम्स के लिए आप लिखते हो डीएफ, ठीक है। जैसे मुझे मार्क्स और नेम भी प्रिंट कराना है तो मैं लिखूंगी एक बड़ा कॉलम लगाओगे, आप लिखोगे नेम कॉमा मार्क्स। वैसे इसमें ये फ़र्क है, आपको दो ब्रैकेट लगाने पड़ते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपके मल्टीपल कॉलम्स एक्सेस हो जाएंगे, ठीक है। आपको रोज रोज एक्सेस करनी है, रो कोई रो एक्सेस करनी है डेटा फ्रेम में, ठीक है। डेटा फ्रेम में अगर आपको कोई रो एक्सेस करनी है तो वो थोड़ा ट्रिकी होता है, अभी हम वो भी देखेंगे कि वो कैसे करते हैं। पहले ये वाला ट्राई कर लेते हैं। जैसे मुझे, वैसे इसमें तो अलग ही कॉलम्स हैं। समझिए मुझे इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स प्रिंट करवाने हैं तो मैं लिखूँगी अगर मुझे सिर्फ इंग्रेडिएंट वाला कॉलम प्रिंट करवाना है तो मैं लिखूँगी डीएफ ब्रैकेट में इंग्रेडिएंट। तो देखिए इससे इंग्रेडिएंट वाला पूरा कॉलम प्रिंट होके आ जाता है। इंग्रेडिएंट वाला देखें पूरा कॉलम ही प्रिंट हो गया, आ गया। सो दिस इज़ हाउ यू यूज़ इट। अगर आपको दो कराने हैं जैसे, तो आप लिखोगे, आपको डबल ब्रैकेट लगाना पड़ता है, बस और कुछ नहीं, फ़र्क है। जैसे मैं लिखूँगी इंग्रेडिएंट्स कॉमा कुकिंग टाइम। ओ, कुकिंग टाइम, अच्छा मैंने यहाँ दो ब्रैकेट नहीं लगाए, लो 1 सेकेंड। कुकिंग टाइम नॉट इन इंडेक्स, इसका मतलब मैंने कॉलम का नाम गलत लिया है। कॉलम का नाम क्या है, कुकिंग टाइम, अच्छा एक साथ है। तो ये आपको कॉलम का नाम का ध्यान रखना पड़ता है कि आपको जो कॉलम का नाम सेम लेना है, ठीक है। तो कुकिंग टाइम भी प्रिंट हो गया, ठीक है, दो ही कॉलम थे, दोनों मैंने प्रिंट करा दिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देख रहे हैं कि आपको अब कॉलम तो आपने प्रिंट करा लिया, ठीक है। अब आपको रोज का देखना है कैसे, ठीक है। रोज के लिए आप क्या करोगे, आप लिखोगे पहले वही सेम ही मैं लिख देती हूँ।
Just a second. तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आई एम सो सॉरी, मेरे घर पे कुछ, माई डैड नीडेड माई हेल्प, सो आई वाज बीच बीच में। ओके, या नाउ आई एम फ्री। सो बेसिकली अब हम आगे क्या कर रहे थे, हम अब वो देखने जा रहे हैं कि अब हम रोज़ को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो रोज़ को एक्सेस करने के लिए हम एक चीज़ यूज़ करते हैं, लॉक। लॉक कहते हैं, ठीक है। बेसिकली होता क्या है, जैसे मुझे एक्सेस करनी है पहली रो, ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगी, डी एफ, क्या है यार, मैं लिखूँगी डी एफ डॉट लॉक ज़ीरो। इससे क्या होगी, फर्स्ट रो जो है वो प्रिंट होके आ जाएगी। एक बार ट्राई कर लेते हैं। मैं लिखूँगी डी एफ डॉट लॉक ब्रैकेट में ज़ीरो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मेरा जो है कहाँ है, हाँ ये रहा मेरी पहली रो इंग्रेडिएंट्स टू थे और कुकिंग टाइम ज़ीरो, ये मेरी ज़ीरोथ रो, ठीक है, ये प्रिंट होके आ गई, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये लॉक क्या है। बेसिकली लॉक इज़ यूज टू एक्सेस डेटा, ठीक है, मतलब डेटा बाय लेवल्स, ठीक है। लॉक क्या होता है, लॉक, लॉक इन pandas is used to access used to access डेटा बाय नेम्स, नेम्स, हाँ, उनके नाम से एक्सेस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मतलब तो इसमें नाम ही, हमारी रो का नाम ही, मतलब बेसिकली रो का तो कोई नाम नहीं है, कॉलम का नाम है हमारी ए नेम एज और डी एफ, बट रो का कुछ नाम नहीं है हमारी, ठीक है। हमारी रो का कुछ नाम नहीं है, तो इसलिए हमने ज़ीरो यूज़ किया, बिकॉज हमारी रो का नाम ही ज़ीरो, मतलब इंडेक्स ही ज़ीरो, हम वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे तो बेसिकली रो का नाम ही ज़ीरो है, ठीक है, मतलब इंडेक्स, क्योंकि रो का नाम नहीं होता, कॉलम के नाम से आप एक्सेस कर सकते हो। लॉक हम कॉलम के नाम से कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन जब आपको मतलब अभी आप रो के लिए हमें ज़ीरो यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज हमने रो के लिए, मतलब हमारी रो क्या है, ज़ीरो रो है, मतलब आप जब डी एफ डॉट लॉक में आप ब्रैकेट में रो का नेम, बेसिकली रो नेम कॉमा कॉलम नेम, आपको ये दो चीज़ें पास करनी होती है, ठीक है। कॉलम, कॉलम नेम, ठीक है, मैंने ये दो चीज़ें पास करनी थी। अब हमारा रो नेम, इसमें रो ज़ीरो ही है हमारी। अगर आपको रो नेम डालना है तो मतलब आपको इंडेक्स बनाना पड़ेगा, कस्टम इंडेक्स जो मैंने बताया था ना, कस्टम इंडेक्स बनाते तब आप जो है हम कुछ और डालते, बट हमारा रो नेम अभी, जैसे अभी हमें ज़ीरो रो एक्सेस करनी है, ज़ीरो रो एक्सेस करनी है, ज़ीरो ही होगा हमारा रो नेम, ठीक है। कॉलम नेम का मतलब है आपका कोई स्पेसिफिक चीज़ एक्सेस करनी है, मतलब पूरी रो एक्सेस करनी है उसमें से कुछ, समझे, मुझे मार्क्स प्रिंट कराने हैं, ठीक है। तो ज़ीरो वन टू, तो मैं लिखूँगी, नहीं, मुझे इसका पहला वाला प्रिंट कराना, नहीं बीच वाला, समझे 90 प्रिंट कराना है, तो उसके लिए मैं लिखूँगी वन कॉमा, मैं यहाँ मार्क्स लिखूँगी, सेम स्पेलिंग, वैसे इसमें तो है नहीं, ओके वाह, मैं दो अलग अलग एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ ना। इधर मेरे गूगल कोलैब में, इधर तो और ही चीज़ें हैं, ठीक है, तो इधर मुझे कुछ और प्रिंट कराना है। इधर मैं दिखा सकती हूँ आपको, पी डी डॉट, मैंने कहाँ बनाया था, ये बनाया था ना मैंने, नहीं इससे ऊपर वाला, ये वाले में अगर मुझे जो है मुझे डी एफ प्रिंट नहीं कराना, मुझे क्या कराना है, मुझे डी एफ डॉट लॉग में मुझे वन कॉमा मार्क्स लिखती हूँ मैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या आता है, मार्क्स, अब देखते हैं क्या आता है। अरे यार क्या है, व्हाट इज रॉन्ग,
डिड आई यूज द नेम रॉन्ग? अच्छा, एम स्मॉल है। अरे यार, गलती से लिख दिया मैंने। ठीक है, तो जब मैं ऐसे लिखूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा, देखें क्या आ रहा है, कहाँ गया, ये रहा। तो इसमें ब्रैकेट में 75 आ रहा है, इसका मतलब मेरी मार्क्स की जीरोथ वैल्यू है ये 86, 75 मेरी फर्स्ट वैल्यू। मेरा आज का दिन ही बुरा है मुझे लग रहा है। 86,75, हाँ ठीक है। तो मेरी मार्क्स की जीरोथ वैल्यू, इस डेटा फ्रेम पे फोकस करें। मेरी मार्क्स की जीरोथ वैल्यू क्या है 86, फर्स्ट वैल्यू क्या है 75 और सेकंड वैल्यू 88। तो अगर मुझे पूरी रो प्रिंट करानी है तो मुझे क्या लिखना होगा, मुझे सिर्फ लिखना होगा df.log का 1, ठीक है, तो पूरी रो प्रिंट होके आ जाएगी। बट मुझे पूरी रो प्रिंट नहीं करानी, फॉर एग्जाम्पल मुझे सिर्फ एक वैल्यू प्रिंट करानी है, ठीक है, सिर्फ एक वैल्यू प्रिंट करानी है, तो मैं उसमें क्या लिखूंगी, समझे मुझे वन, मतलब मार्क्स, पहले तो आपको लिखना पड़ता है कौन सा आपको रो नंबर, तो मुझे समझे नहीं, पहले तो आपको लिखना पड़ता है, मतलब आप 1 लिखोगे और आप लिखोगे एज, तो एज का जो है फर्स्ट इंडेक्स वाला जो प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। अगर आप ये दोनों पास करोगे रो और कॉलम, तो आपका जो है फर्स्ट इंडेक्स का जो भी है वो प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। एज के फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, बेसिकली ऐसे वर्क करता है, पहले तो एज कॉलम पे जाएगा, ठीक है, फिर देखिएगा आपने कौन सा इंडेक्स पास कर रखा है, मैंने 1 पास कर रखा है तो 17 प्रिंट कर देगा डायरेक्ट, ठीक है। सो दिस इज हाउ लॉक वर्क्स, ठीक है। इट्स ईजी, इट्स नॉट वेरी हार्ड, आई होप यू अंडरस्टूड। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देख रहे हैं कि वो हमने देख लिया कि हम एक स्पेसिफिक वैल्यू कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। पूरा कॉलम भी आप एक्सेस कर सकते हो, तो वो सब देख लिया। अगर आपको पूरा कॉलम एक्सेस करना है, ठीक है, अगर पूरा कॉलम ही प्रिंट कराना है तो आप क्या कॉलन डाल देना, बस एक कॉलन। कॉलन का मतलब होता है कि पूरी चीज़, पूरी चीज़। कॉलन का मतलब होता है, जैसे कॉलम, कॉलन मैंने कहाँ डाला, रो वाली पार्ट में। सिंटैक्स क्या है, पहली बात तो मैं सिंटैक्स यहाँ लिख देती हूँ, df.log, सबसे पहले आपको पास करना होता है रो नेम, और फिर आपको पास करना होता है कॉलम नेम, ठीक है। ये दोनों चीज़ें पास करनी होती है। अब यहाँ जो है रो नेम की जगह मैंने कॉलन डाल दिया। कॉलन का मतलब होता है वो पूरी चीज़, मतलब सारी रोज, ठीक है। तो देखें 0 1 2 तीनों रोज प्रिंट हो कर आई, कौन सी कॉलम की, एज कॉलम की, ठीक है। तो ये होता है कॉलन का मतलब। कॉलन का मतलब होता है कि वो पूरी चीज़, मतलब अगर रो नेम पे कॉलन लगा मतलब सारी रोज प्रिंट होके आएंगी, कौन सी कॉलम, कॉलम की, एज कॉलम की, ठीक है। तो हम ऐसे ही करते हैं, ठीक है। उसके बाद अब इसमें लेट मी सी आपके मॉड्यूल में पहली बात तो कितना पढ़ाया है, बिकॉज मैंने तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही पढ़ा दिया। डेटा फ्रेम, ओके, क्रिएटिंग अ डेटा फ्रेम, मैंने क्रिएटिंग अच्छा डेटा फ्रेम बताया, तो फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज, अच्छा ये नहीं बताया मैंने, इट्स वेरी इजी, बट मैं बता दूंगी। फ्रॉम एन एरे भी बना सकते हो। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट डेटा, या दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज समथिंग जो मैं कराना चाहती हूँ, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट डेटा। बेसिक फंक्शन बता दिया। इसमें क्या है, एक्सेसिंग डेटा, लॉक बता दिया मैंने अभी जस्ट। ऐड डेटा, ओके, दो, ऐड डेटा मतलब दो डेटा फ्रेम्स को आप जो मिला रहे हो, ठीक है। सो उसको हम लाइक अपेंड फंक्शन होता है या और भी चीज़ें होती है, उससे हम मिला सकते हो। तो एक एक करके जाएंगे, एक एक करके जाएंगे, ओके। जो आपके अब मॉड्यूल में उस पर ज़्यादा फोकस होगा मेरा। ये बैटरी की तो नहीं है, ये अभी तो है। ओके, सो सबसे पहले क्रिएटिंग अ डेटा फ्रेम में हम ये तो हमें पता है, ये वाला तो मैंने करा दिया आपको, क्रिएटिंग अ नॉर्मल डेटा फ्रेम, ठीक है। डेटा फ्रेम, हाँ ये वाला तो करा दिया, पहला वाला फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। डेटा फ्रेम बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। हम जैसे समझो दो तीन बड़े बड़े डेटा फ्रेम मैंने बना, मतलब दो तीन चीज़ें बना ली। बेसिकली ये आपको पता चल रहा होगा कि ये जो मतलब मैंने जो बनाया था इधर, जैसे कौन सा था मेरा मार्क्स वाला जो था ये, तो दिस इज अ डिक्शनरी ना। डिक्शनरी से बेसिकली हम क्या करते हैं, डेटा फ्रेम बना देते हैं। ये देखेंगे मार्क्स हमारी की है, और ये 85 90 और 78 हमारी वैल्यू बैठते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि पहला होता है क्रिएटिंग फ्रॉम अ डिक्शनरी, क्रिएटिंग अ डेटा फ्रेम फ्रॉम अ डिक्शनरी। तो डिक्शनरी तो बहुत आसान है, मतलब नॉर्मल तरीका जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है।
कि आपने से लिया नेम आयशा सारा कुलसुम, एज जो है हमने कुछ ली, और डेटा फ्रेम भी हमने कुछ लिया और उससे बना दिया, ठीक है, दिस इज द वेरी सिंपल वन। उसके बाद हम बात कर रहे हैं फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ डिक्शनरी मतलब आपने दो तीन बना दी डिक्शनरी, और फिर क्या किया, फिर लिखा मतलब पेशेंट वन कॉमन पेशेंट टू कॉमन पेशेंट थ्री, और फिर जो इनको मिला दिया, ठीक है, उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। उसके बाद जो है मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता मुझे बेसिकली, क्योंकि हम डेटा हमें मोस्टली इम्पोर्ट ही करते हैं, ठीक है, तो हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सीख लेते हैं कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करते हैं हम डेटा पाइथन में। जैसे अगर मुझे इसी गूगल कोलैब में नीचे जाके अगर मुझे कोई डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना हो, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि डेटा जैसा आप जैसा आपके आपके उसमें क्या कहते हैं, व्हाट डू यू से, आपके उसमें आपकी जो प्रोजेक्ट था उसमें जो है डेटा हमें कहाँ से मिला था, मतलब डेटा मैंने खुद तो नहीं बनाया था, तो डेटा मुझे कहाँ से मिला था, मुझे बेसिकली डेटा इससे मिला था, ठीक है, मैंने जैसे इंपोर्ट किया था, तो इंपोर्ट कैसे करते हैं, मतलब मैंने खुद से नहीं बनाया था, डेटा आप खुद से नहीं बनाते हो, मोस्टली आपको इंपोर्ट करना था। इंपोर्ट कैसे करते हैं, इससे जाओगे अपने डॉक्यूमेंट्स में, आपका वो कहाँ है, लिखने से आपका प्रोजेक्ट, ये रहा आपका डेटा सेट, ठीक है, ये एक्सेल फॉर्म में मैं इसे ओपन करूंगी, ठीक है, और मेरा ये आ गया इधर, ठीक है। अब मैं इसे अपने कोड में कैसे लाऊंगी, बिकॉज मेरे अभी ये मशीन को पहुंचा नहीं है, ठीक है, अभी मुझे मशीन को बोलना है कि ये मेरा डेटा है और मैं इस पे काम करूंगी। तो अब मैं क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी डी एफ इज इक्वल टू पी डी डॉट रीड अंडरस्कोर एक्सेल यूज करेंगे, ठीक है, ब्रैकेट में नाम लिखूंगी मैं इसका, ये कॉपी कर लेती हूँ नाम, या अच्छा, ओके नो इश्यूज। तो मैं यहाँ नाम लिखूंगी, मैं लिखूंगी डेटा सेट, एकदम सेम नाम लिखना है, डॉट एक्स एल एक्सएल, सॉरी ये तो स्मॉल में एक्सएल एस एक्स, ठीक है, इसलिए होगा मेरा, अब क्या हुआ, मेरा ये जो डेटा सेट है अब ये मेरे मशीन को पहुंच गया, देखिए ये रन हो गया ना, ठीक है, अब मैं प्रिंट करा देती हूँ उसे एक बार आपको दिखाने के लिए। देखिए प्रिंट हो गया, इतने सारे कॉलम्स हैं, ठीक है, और ये कॉलम्स छोटे नहीं है, बीच में डॉट 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 क्यों है, क्योंकि कॉलम्स काफी लंबे थे और सारा नहीं दिखाते हैं ना इधर, मतलब ऑब्वियसली इतनी छोटी जगह पे सारे कॉलम्स क्यों दिखा दोगे, आपके 100 कॉलम्स है, ठीक है, 98 कॉलम्स है, तो सारे इधर नहीं दिखा पा रहे हैं, नहीं 99 कॉलम्स है, तो इधर सारे दिखा नहीं पा रहे इसलिए। तो ऐसे हम इंपोर्ट करते हैं चीजें, कैसे करते हैं, हम लिखते हैं डी एफ पी डी डॉट रीड एक्सेल, दिस इज वेरी इजी, आप चैट जीपीटी में जाओगे, आप उससे बोलोगे मुझे फाइल इंपोर्ट करनी है, आपको बता देगा कैसे इंपोर्ट करनी है, ठीक है। और भी तरीके की फाइल्स होती हैं, वो भी इंपोर्ट करना आसान होता है, जैसे मेनली तो एक्सेल फाइल होती है, और एक और होती है सीएसवी फाइल, ठीक है, मैं आपको वो भी इंपोर्ट करना सिखा देती हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है यहाँ, ये क्लोज करो, सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, इस पार्ट में, यहाँ जाओगे फाइल्स में क्लिक करोगे, फिर आप इस पार्ट में जाओगे अपलोड, ठीक है, फिर आप जो है अपनी फाइल ढूंढोगे, ठीक है, लेट मी फाइंड अ सीएसवी फाइल, ये ये मेरी डॉट सीएसवी की फाइल है, ठीक है, डॉट सीएसवी भी एक टाइप होता है जैसे एक्सेल होता है, ठीक है, वैसे ही डॉट सीएसवी होता है, ठीक है। अब ये देखिए ये इंपोर्ट हो रही है अभी, ठीक है, लेट्स वेट। ठीक है, तो अब ये इंपोर्ट हो गई है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे यहाँ लिख लेंगे, ठीक है, अब हम कैसे, अब यहाँ तो आ गई है, लेकिन अभी हमारे मशीन के पास नहीं, अभी हमने इंपोर्ट नहीं किया है, तो हम लिखेंगे डी एफ डॉट डी एफ इज इक्वल टू पी डी डॉट रीड सी एस वी। पहले हमने क्या किया था, रीड एक्सेल, क्योंकि वो एक्सेल फाइल थी, ये सीएसवी है और मोस्ट कॉमन यही है, ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इस ब्रैकेट में हम क्या पास करते हैं, इसका कॉपी पाथ कर लेते हैं, कॉपी पाथ करोगे आप, ठीक है, यहाँ 3 कॉलम पे जाके कॉपी पाथ करोगे और वो आपको इसके अंदर पास कर देना है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, 1 सेकेंड, अब बेसिकली आसान तरीका मैं बताती हूँ क्या करना है आपको, आपको डी एफ डॉट पी डी अंडर स्कोर सी एस वी और फिर ये नाम लिख देना है, ठीक है, इसका नाम जो भी है
मैं इसका नाम रीनेम कर देती हूँ, कोई आसान सा नाम, मूवी। बिकॉज ये मूवी वाला डेटा सेट था मेरा पहले का जब मैं कर रही थी। ठीक है। हाँ, तो ये देखिए मैंने अब इसे रीनेम कर दिया, तो मैं इसे यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। मूवी डॉट सी एस वी। ठीक है। आई थिंक, अच्छा दिस इज नॉट अ, अच्छा ये जिप वाली फाइल है, लेट मी इम्पोर्ट सी एस वी वाली फाइल, ये गलत फाइल इम्पोर्ट हो गई। ठीक है, ये मैंने सी एस वी वाली नहीं करी, रुके। होना तो चाहिए मेरे पास, मोस्टली पाइथन, मोस्टली एक्सेल में क्यों है, इतना सारा तो मैंने किया है। Clients, ये सब भी किस अंदर है। तो CSV फॉर्म में मैं देख लेती हूँ क्यों नहीं मिल रही मुझे कोई फाइल आज, आई डोंट नो व्हाई, लेट मी सी। CSV फॉर्म में कोई डेटा मुझे मिल जाए, होना चाहिए मेरे पास, यूजुअली होता है। ये है तो, लेकिन ये जिप्ड है। तो अभी फिलहाल मुझे मिल तो नहीं रही है, दिस लेट मी ट्राई दिस फाइल, ये एक्सेल फाइल है या CSV फाइल है। ओके, दिस वन आई गॉट, क्विकर डॉट कार, लेट्स ट्राई दिस, ठीक है। क्योंकि आप जब यहाँ रीड CSV लिख रहे हो तो आपको CSV फाइल ही बतानी पड़ेगी। तो मुझे मिली है क्विकर अंडरस्कोर कार। देखते हैं, अब मैं इसे इंपोर्ट करना चाहूँ, ओ ये हो गई, ठीक है। अब मैं लिखूंगी प्रिंट DF, तब ये, सॉरी, क्या लिख रही हूँ मैं आज, मेरा दिन खराब है आज का, बस और कुछ भी नहीं। प्रिंट, अगर मैं ब्रैकेट में DF लिखूं तो इससे मेरी प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने इंपोर्ट कर ली CSV, मतलब आपको देखना पड़ता है कि आपके एंड में क्या, अब आपको कैसे पता चलेगा एक्सेल फाइल है। एक्सेल के लिए डॉट एक्सएल एस एक्स लिखा होता है, ठीक है। CSV के लिए डॉट CSV लिखेगा। और भी तरीके होते हैं, जेसन होती है, ठीक है, उसके लिए लिखा रहता है, बट दिस इज नॉट, जैसे टेक्स्ट फाइल होती है तो डॉट TXT लिखा रहता है, ठीक है। तो आपको वो चीज़ देखनी पड़ेगी, बट दिस इज अ वेरी इजी थिंग, या आप कभी भी आपको प्रोजेक्ट इंपोर्ट करना है, आप बहुत आसानी से कर लोगे। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप चैट जीपीटी से पूछना कि इंपोर्ट कैसे करते हैं, तो वो आपको बता देगा, ठीक है, फौरन ही। तो वो आ जाएगा फिर हमारा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, लेट मी सी आगे और क्या क्या चीज़ें हैं। थोड़ी चीज़ें रह गई हैं अब। और तो मुझे ऐसे कुछ नहीं लग रहा है, लेट मी चेक इसमें भी एक बार। ये हो गया बेसिक फंक्शंस ऑफ pandas में, ऐड डेटा और मर्ज टू डेटा फ्रेम्स, ये दोनों भी बता देती हूँ मैं। फिर मैं सारे एक साथ कर लूँगी। लेट मी टेल दिस ऑल्सो, एक बार मैं लिख के बता देती हूँ, ठीक है। तो ऐड डेटा का देखते हैं सबसे पहले। ऐड डेटा इन पांडास, ठीक है, अगर हमें नया कॉलम जैसे जोड़ना है, आई थिंक उस चीज़ के बारे में बात हो रही है। लेट मी टेल यू इन द नोट ओनली।
ऐड डेटा उतना यूज़ नहीं होता है। तो ऐड डेटा का मतलब मुझे तो नहीं लगता आप कोई ऐड करता है, बट बिकॉज आई डोंट यूज दिस अ लॉट। ऐड डेटा का मतलब होता है आप नई रोज़ ऐड कर रहे हो, ठीक है, अपने डेटा फ्रेम में। तो आप क्यों ही ऐड करोगे, आप डेटा से क्यों छेड़खानी करोगे। बट समझो आप डेटा भी खुद से बना रहे हो, जैसे मैंने बना के दिखाया था अभी नेम मार्क्स वाला, वैसे ही उसमें अगर मुझे वही एग्जांपल ले लूँ, अगर मैं ये वाला ही, ठीक है, अगर इसमें मुझे ऐड डेटा करना है तो ऐड डेटा मतलब एक और न्यू रोज ऐड करना बेसिकली, ठीक है। तो हम वो कैसे करते हैं, हम वो ऐसे करते हैं, जैसे ओके, ऐड डेटा का मतलब नॉट दिस वन, आई थिंक ऐड डेटा का मतलब देखो दो तीन मतलब होते हैं ऐड डेटा का। तो आई थिंक आपके मॉड्यूल में जो मतलब है कि the pop for the function you use concatenate। अच्छा, आपके दो डेटा फ्रेम्स हैं, ठीक है, आपके दो डेटा फ्रेम्स हैं, आपको उनको आपस में ज्वाइन करना है, इसका मतलब है इधर ऐड। ठीक है, तो आप लिखोगे डी एफ इज इक्वल टू, आपने अपना पहला डेटा फ्रेम बनाया है, ठीक है। डेटा फ्रेम आप इसी के अंदर भी बना सकते हो, लेकिन मैं बाहर ही बना रही थी बिकॉज फालतू में इतना लंबा लिखना पड़ता है इसके अंदर, ठीक है। जैसे मेरा ये डेटा फ्रेम है और यहाँ लिखना भी पड़ता है कॉलम्स, ये तो इसमें थोड़ा मुश्किल होता है, उसमें बस ना नेम मार्क्स वो सब लिख दो, ठीक है। तो जैसे ए कॉमा बी है, ठीक है। तो ये मेरा डेटा फ्रेम है, ये पहला वाला डेटा फ्रेम है, डेटा फ्रेम वन कह देती हूँ इसे, डेटा फ्रेम टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम, ठीक है। डेटा एफ कैपिटल होना चाहिए, डेटा फ्रेम ब्रैकेट में 5,6 और 7,8 कॉमा कॉलम्स, कॉलम्स करके लिखना पड़ता है, कॉलम के नाम। ये अभी ये समझ नहीं आ रहा होगा आपको मैं लिख रही हूँ तो, लेकिन आपको मतलब उस बिकॉज आपके मॉड्यूल में ऐसा है, बट मैं तो अलग तरीके से कराई थी, वो भी ज़्यादा सही है, वो ज़्यादा ईजी। बेसिकली अब मुझे इन दोनों को कंबाइन करना है, ठीक है, दो समझो दो अलग अलग टेबल्स हैं, ठीक है, मुझे उनको कंबाइन करके एक टेबल बनाना है, वो कैसे करेंगे वही बता रहा है ये, ठीक है। तो हम यूज़ करेंगे, जैसे मैं एक नया नाम लूँगी, डी एफ अंडर स्कोर कंबाइंड लिख देती हूँ, ये मेरा नया डेटा फ्रेम है। तो मैं इसमें लिखूँगी पी डी डॉट कॉनकैट, यूज़ करते हैं हम कॉनकैट फंक्शन, ब्रैकेट में डी एफ वन कॉमा डी एफ टू, अपने दोनों जो आपको डेटा ऐड करने हैं वो आप पास कर दो, ठीक है। और तो इसमें एक और पैरामीटर होता है इग्नोर इंडेक्स, फ़िलहाल के लिए रहने दें, इतना कर देते हैं, ठीक है हम। तो जब मैं प्रिंट करूँगी, प्रिंट डी एफ अंडर स्कोर कम्बाइंड, तो जो है क्या होगा, दोनों जो है मिल के आ जाएंगे, दोनों जो डेटा फ्रेम्स है वो कंबाइन होके आ जाएंगे। बेसिकली हम टी डी डॉट कॉनकैट इसीलिए यूज़ करते हैं, ठीक है। लेट मी शो यू इन कोड, इधर तो बोरिंग ही लगेगा, समझ भी नहीं आएगा इतना अच्छा, ठीक है। इधर देखते हैं कोड में, ठीक है। क्या करेंगे, हाँ, डी एफ इज इक्वल टू पी डी डॉट डेटा, डेटा फ्रेम ब्रैकेट में हेलो, हेलो, वालेकुम अस्सलाम। I'm recording the class only. Okay, so I can't join. Yeah, because you can join, but I don't think you will be able to understand anything. Ab thoda sa. Yeah, that's why. So I just, Okay. yeah, I thought that is. I thought if something new is being started, I will just. If so, yeah. I will join it. It is new, but like अब वो काफी आगे आ चुका है ना pandas में काफी, so I don't know if you will I don't think you will understand. Yeah, I don't think so. Okay, I'll just see you later on and then after move on. Yeah, yeah. Okay, thank you. ठीक है, thank Thank you. तो हम पढ़ रहे थे, तो कॉलम्स में जैसे मैंने यहाँ लिखा कॉलम का नाम ए है, पहले कॉलम का नाम, दूसरे कॉलम का नाम बी है, ठीक है। ठीक है, तो ये एक डेटा फ्रेम हो गया। अब मैं एक और डेटा फ्रेम बनाना चाह रही हूँ, इसको हम डेटा फ्रेम वन कह देते हैं, ठीक है। अब मैं एक और डेटा फ्रेम बनाना चाह रही हूँ डेटा फ्रेम टू करके, ठीक है। तो इसमें जो है मैं पास कर रही हूँ 5,6 और
7,8 पास कर देती हूँ। कॉलम नेम ए बी रख रही हूँ, कॉलम नेम सेम होना चाहिए ना दोनों का, तभी तो आप कंबाइन कर पाओगे। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं कंबाइन करना चाह रही हूँ, तो मैं लिखूँगी डी एफ इज इक्वल डी एफ अंडर स्कोर कंबाइंड नाम रख देती हूँ नए वाले डेटा फ्रेम का, पी डी डॉट कॉनकैट लिखूँगी। ठीक है, ब्रैकेट में मैं लिखूँगी df1 df2। ठीक है, और अब मैं प्रिंट करूँगी, प्रिंट डी एफ अंडर स्कोर कंबाइंड। पहले इंडिविजुअली देख लेते हैं, df1 को इंडिविजुअली देख लेते हैं। कहाँ, ये कहाँ बोल रहा है, is there anything wrong? I don't know what it is saying. mm, ओके, सो हमारा पीडीएफ सब कुछ सेम तो था। आई डोंट नो व्हाट इट चेंज्ड, इट डिडंट चेंज एनीथिंग, राइट। सो देखिए हमारा जो df1 है वो क्या है, ये इग्नोर मारें, ये 0 और 1 जो है इंडेक्स है। हमारा ए, कितनी छोटी रो है, दिस लुक्स सो स्मॉल। हमारी जो ए है वो उसका कॉलम है 1, मतलब वो कॉलम है, ए कॉलम है 1 3 और बी कॉलम है 2 4। ठीक है, अब df2 देखते हैं, df2 में क्या हमारा ए है 5 7 और बी है 6 8। अब हम मिला रहे हैं, अब मैं प्रिंट कराऊंगी कंबाइंड वाला। ठीक है, कंबाइंड वाला देखें, 1 3 5 7 2 4 6 8, मतलब df1 और df2 कंबाइन कर दिया। तो वो कैसे करते हैं, pd डॉट कॉनकैट यूज़ करके ब्रैकेट में आपको पास करना होता है वो दो डेटा फ्रेम्स जो आपको कंबाइन करने हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमने डेटा फ्रेम बनाने के बहुत तरीके सीखे। ठीक है, मुझे सबसे अच्छा वाला कौन सा लगता है, अगर आपको खुद से बनाना है, पहली बात तो खुद से ज़्यादातर बनाते नहीं है, आपको खुद से बनाना है प्रैक्टिस के लिए, तो आप ये वाला बना सकते हो। वरना आप चैट जीपीटी से बोल सकते हो मुझे एक डेटा फ्रेम बना के दे दो, वो बना के देते हैं। ये सब चीज़ें में आप चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हो, बट अभी तो बहुत बेसिक है तो आपको सीखना पड़ेगा, लेकिन जब आप थोड़ा सीख जाओ तो आप चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, डेटा फ्रेम बनाने के लिए, अगर मुझे कोई डेटा बनाना भी होता है खुद से प्रैक्टिस करने के लिए, तो मैं चैट जीपीटी से बनवाती हूँ। ठीक है, तो जैसे ये एक तरीका है, ठीक है, डेटा बनाने का, यूजिंग अ डिक्शनरी, मैं इसी से बनाती हूँ डेटा फ्रेम। अगर आपको दूसरा तरीका यूज़ करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, आप इधर कॉलम की कॉलम की वैल्यूज़ पास करनी होती है और ये कॉलम के नाम। ठीक है, ये आप कह दो ये पहली रो पास करी आपने, ये आपने दूसरी रो पास करी। ठीक है, और ये कॉलम के नाम। ठीक है, ये पहली रो है, देखें ये मतलब ये डेटा फ्रेम 2 में पहली रो है। लेट मी प्रिंट डेटा फ्रेम 2, तो उसमें डेटा फ्रेम 2। ठीक है, डेटा फ्रेम 2 में ये पहली रो होगी। ठीक है, देख सकते हैं 5 और 6, और ये वाली दूसरी रो होगी 7 और 8। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू यूज। ठीक है, नॉट even feeling well. Okay, so we finish this. Now we are gonna talk about one last topic. Okay, उसके बाद hopefully हमारा डेटा फ्रेम खत्म हो जाएगा। Let me see. हाँ, एक और टॉपिक होता है हमारा मर्ज। ठीक है, मर्ज क्या होता है, अब कॉनकैटिनेट तो आपने देख लिया। कॉनकैटिनेट में अगर आप नोटिस करोगे हमारे यहाँ, अगर आप कॉनकैटिनेट में नोटिस करोगे दोनों कॉलम्स के, मतलब दोनों जो डेटा फ्रेम्स हैं उनके जो कॉलम्स हैं उनके नाम सेम है। ठीक है, ए बी और ए बी ही है। क्या पता हमारे अलग अलग नाम हो, तो हम कैसे उनको मर्ज करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने एक एक मतलब हम एक लास्ट चीज़ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मर्ज। मच, वैसे आप इतना यूज़ नहीं करते ये सब, बट क्या पता यूज़ करो कभी कभी। कभी कभी क्या पता आपके प्रोजेक्ट में आपको दो अलग अलग टेबल्स दी हों। ठीक है, तो मर्ज कैसे काम करता है समझो, दो अलग अलग टेबल्स हैं और इसमें अलग अलग कॉलम्स हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम मिलाते कैसे हैं बेसिकली, समझो इसमें एक कॉलम है नाम और इसमें भी एक कॉलम है नाम, तो आप क्या करते हो, ढूंढते हो कि एक सिमिलर कोई कॉलम मिल जाए और फिर आप मिला सकते हो। बट अगर आपके कॉलम सारे अलग हैं तो आप नहीं मिला सकते। ठीक है, कोई एक कॉलम हमें सिमिलर मिलना चाहिए। ठीक है, इट मीन्स joining two tables using a common column। ठीक है, तो आप हमेशा कैसे ज्वाइन कर सकते हो, एक कॉमन कॉलम होना चाहिए दोनों टेबल्स में, ताकि तभी आप मिला सकते हो। ठीक है, तो मैं इसका एग्जांपल आपको जो है डायरेक्ट कोड में करके दिखाती हूँ। ठीक है, वन सेकेंड।
ओके, सो जैसे मैंने df1 एक डेटा फ्रेम बनाया, ठीक है, pd डॉट डेटा फ्रेम। एक काम करती हूँ, मैं पहले ही बना लेती हूँ। पहले मैं डेटा बना लेती हूँ, डेटा वन मैं पहले बनाती हूँ, फिर उसे डेटा फ्रेम बनाऊंगी, ठीक है, मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। तो कर्ली ब्रैकेट में मैंने लिखा पहले आईडी, ठीक है, आईडी मैंने लिखा 1 2 3, 1 2 3 आईडी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा नेम, ठीक है, नेम में मैंने लिखा ए कॉमा, नेम में चलो कोई नाम ही लिख देती हूँ, सारा, सबा, जुहा, ठीक है, 3 नाम लिख दिए। तो ये मेरी पहला डेटा हो गया। क्या प्रॉब्लम है? एक्सपेक्टेड आफ्टर डिक्शनरी। आई डोंट अंडरस्टैंड इसमें प्रॉब्लम क्या है। सही तो लग रहा है। नेम ज़ारा, तो ये मैंने, ओके, यहाँ मैं ब्रैकेट लगाना भूल गई, ओके, 1 सेकेंड। तो आई थिंक अब सही हो जाना चाहिए। करूँ क्या मैं? व्हाट द हेक इज रॉन्ग? ओके, सो अब हमारा चल गया, ठीक है। माय गॉड, व्हाट इज रॉन्ग? लेट मी जस्ट यूज, पता नहीं क्या हो गया है। लेट मी जस्ट यूज दिस वन, ठीक है। ये मेरा पहले, ठीक है, तो ये मेरा पहला डेटा है, ठीक है, डेटा वन कह रही हूँ मैं इसे। अब इससे मैं जल्दी से डेटा फ्रेम बना लेती हूँ। कैसे बनाते हैं? df1 इज इक्वल टू पी डी डॉट, क्या लिखते हैं, डेटा फ्रेम, ठीक है। डेटा फ्रेम ब्रैकेट में क्या पास करेंगे? अपना डेटा वन, ठीक है। तो इससे हमारा पहला डेटा फ्रेम बन गया। हम उससे दिखाते हैं, ठीक है, वो कुछ ऐसा लग रहा है। सॉरी, df1 लिखना था मुझे, हाँ। तो हमारा जो पहला डेटा मैंने बनाया, वो डेटा फ्रेम वो कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक है। क्या करते हैं, बेसिकली पहले मैं एक डेटा अलग से बना लेती हूँ, फिर उसे पी डी डॉट डेटा फ्रेम में पास कर देती हूँ, ठीक है, तो मेरा बन जाता है। अब एक बना लिया, मुझे एक और बनाना है। मैं लिखती हूँ डेटा टू इज इक्वल टू, यहाँ मैंने लिखा एक, मतलब जब मैं अभी मर्ज करना सिखा रही हूँ, मर्ज कैसे कर सकते हैं, तभी कर सकते हैं जब आपका दोनों में एक कॉलम सेम हो। तो मैं नेम जो है, नेम नहीं, ओके, मैं नेम सेम रख रही हूँ, ठीक है। नेम में मैं लिख रही हूँ, नेम सेम ही रख रही हूँ मैं, तो ये पूरा कॉपी कर लेती हूँ। कोई एक कॉलम सेम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं लिख रही हूँ, थोड़ा अलग भी हो सकता है आपका, जैसे मैंने लिखा, या कोई और भी नाम लिख सकती हूँ मैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखते हैं क्या आता है, ठीक है। ये हो गया पहला। अब मैं उसके बाद लिख रही हूँ, मैं कुछ और ले रही हूँ, आईडी, ठीक है। जैसे आईडी में मैं ले रही हूँ 1 2 3, ठीक है। अब देखते हैं कि फिर इसका डेटा वो बना लेती हूँ, डेटा फ्रेम पी डी डॉट डेटा फ्रेम ब्रैकेट में डेटा टू का बनाना, ठीक है, बन गया। अब मैं इसे एक बार देख लेती हूँ प्रिंट करा के, df2। तो हमारा ऐसा लग रहा है, आयशा की आईडी है 1, सारा की आईडी है 2, और आयशा, ओके, मैंने दोनों सेम ले लिए। नहीं, सबा ले लेती हूँ, हाँ। तो अब देखते हैं, सबा, आयशा, सारा और सबा, ठीक है, इनकी आईडी और उनका नाम है, ठीक है, डेटा फ्रेम टू में। अब मुझे डेटा फ्रेम वन और डेटा फ्रेम टू मर्ज करना है, ठीक है। अब मर्ज कैसे करेंगे? मर्ज कर सकते हैं यूजिंग, मर्ज ही नाम है फंक्शन का। तो मैं लिखूंगी रिजल्ट, ठीक है, या हाँ, रिजल्ट ही लिख दूँ, क्योंकि डी एफ कम, तो मैं लिखूंगी df1 डॉट मर्ज ब्रैकेट में df2, ठीक है, और मैं प्रिंट करवाऊंगी अपने रिजल्ट को। तो इससे क्या होगा, ये दोनों मर्ज हो जाए, व्हाट इज रॉन्ग, ये दोनों मर्ज हो जाएंगे, ठीक है,
ठीक है, तो देखो बेस्ड ऑन द कॉलम, जो कॉलम हमने दिए मतलब जो सिमिलर कॉलम होता है उसमें जो सिमिलर टर्म्स है वो मर्ज हो जाते हैं। बस आयशा और सारा, कुलसुम और सबा क्यों नहीं प्रिंट हुआ, बिकॉज वो दोनों में कॉमन नहीं है। जो कॉमन वाले हैं वो प्रिंट हो जाते हैं, ठीक है, जो कॉमन वाले हैं वही प्रिंट होंगे, बाकी नहीं होते। जो कॉमन वाले हैं वही प्रिंट होते हैं, ठीक है। तो सारा और सबा क्यों नहीं हुआ है, बिकॉज सॉरी, कुलसुम और सबा क्यों नहीं हुआ, बिकॉज कुलसुम और सबा दोनों में कॉमन नहीं थे, ठीक है। अगर कॉमन होते तो वो भी प्रिंट होते। अगर मैं दोनों में कुलसुम कुलसुम कर दूँ तो आप देखना तीनों प्रिंट, अब देखना सब प्रिंट हो जाएगा। कुलसुम कुलसुम, अब देखिए सब प्रिंट हो रहा है, आयशा सारा कुलसुम तीनों प्रिंट हो रहा है। बट पहले क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि दोनों कॉलम में कुलसुम का डेटा नहीं था, ठीक है। तो मतलब जो जो कॉमन चीजें हैं वही प्रिंट होंगी, ठीक है, जो कॉमन नेम है वही प्रिंट हुआ, ठीक है। और फिर उस नेम से करस्पॉन्डिंग एज, मार्क्स और आईडी सब प्रिंट हो गया, ठीक है। बट नेम जो है, एक कॉलम जो है कॉमन होना चाहिए, एक कॉलम में कुछ वैल्यूज तो कॉमन होना चाहिए। पहली बात तो कॉलम नेम सेम होना चाहिए, ठीक है, और जो है वैल्यूज कॉमन होनी चाहिए। अगर मैंने नाम बदल दिया, मैंने इसका नाम नेम्स कर दिया, तो अब देखें, अब इसमें रिजल्ट आ जाएगा। अब इसमें क्या बोल रहा है रिजल्ट में, मर्ज एरर, नो कॉमन कॉलम नेम कॉलम्स टू परफॉर्म मर्ज ऑन, ठीक है। तो ये बता रहा है कि नेम मैंने बदल दिया ना, तो कह रहा है अब कोई कॉमन कॉलम बचा ही नहीं। तो कॉमन कॉलम करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, जो है नेम सेम रखना पड़ता है, ठीक है। जैसे ही आप जरा सा भी, इवन कि कैपिटल और स्मॉल में भी फर्क होता है, अगर आपने जरा सा भी चेंज किया तो पूरा मर्ज खराब हो जाता है, आप मर्ज नहीं कर सकते फिर, ठीक है। अब मैं ट्राई करती हूँ कि कोई डेटा फ्रेम मुझे मिल जाए जिस पे मैं दो तीन चीज़ें दिखा दूँ। लेट मी सी, अगर मैंने किया होगा तो मैं वही दिखा सकती हूँ। देखिए सबसे पहले क्या होता है, आपको कोई भी डेटा मिलता है तो आपने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले आपने इसे इम्पोर्ट किया, ठीक है। ये आपका भी तो प्रोजेक्ट होगा, उसमें मैंने कितना यूज़ किया है वो देखते हैं। क्या नाम है प्रोजेक्ट का, I forgot। ईशा का भी कुछ नाम था ना, क्या नाम था प्रोजेक्ट, क्या नाम था यार प्रोजेक्ट का। हम्म, किस नाम से सेव करना था प्रोजेक्ट, लेट मी सी वन सेकंड। MIA करके था, ओके। MIA, I cannot find this here, I don't know why। SCD report, I don't know why I cannot find here। पता नहीं क्या नाम था इस, अच्छा ये रहा। इसी में देखते हैं कि हमने क्या क्या किया है, ठीक है। एनालाइज करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने क्या किया था, देखिए सबसे पहले हमने जो एक्सेल फाइल थी, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ क्लिक किया फाइल्स पे। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, हमने यहाँ क्लिक करना है अपलोड पे। फिर जो भी हमारा डेटा है किस फॉर्म में है, जैसे कि जो भी फॉर्म में है, ठीक है, जो भी आपको डेटा मिला आपको पहले देखना है वो किस फॉर्म में, पहले आप इंपोर्ट कर लो। कैसे करोगे, कहाँ गया आपका डेटा, ये रहा डेटा सेट, ठीक है। आप उसे ओपन दबाओगे तो वो क्या हो जाएगा, वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ आ गया। अब आपको देखना है किस फॉर्म में, .xlsx। तो आप इसे चैट जीपीटी से पूछ लेना किस फॉर्म में, आप खुद समझ जाना कि एक्सेल फॉर्म में। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ लिखोगे pd.read excel और फिर ये इसका नाम, या तो आप इसका पाथ दे सकते हो, कॉपी पाथ करके आप यहाँ पाथ भी पेस्ट कर सकते हो, या मैंने पाथ पेस्ट कर रखा है। बट बेटर क्या होता है, आप इसका नाम ही लिख दो डायरेक्ट, डेटा से .xlsx सब जब यहाँ लिख देते हो तो उसके बाद से ही इम्पोर्ट हो जाता है, ठीक है। एक बार ये इंपोर्ट हो गया तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने हेड यूज़ किया, df.head। ये क्या करता है, हम पहली 10 रोज देख रहे हैं, हमने यहाँ 10 पास किया ना, तो हम पहली 10 रोज देख सकते हैं, ठीक है। तो पहली 10 रोज हमें दिख रही हैं, तो हम इसमें थोड़ा जान सकते हैं, मतलब ML प्रोजेक्ट में ये यूज़ क्यों होता है, हम थोड़ा देखते हैं यार कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं इसमें, आईडी है, कन्वर्जन है, एज है, तो हम थोड़ा देखते हैं कि यार क्या क्या हो रहा है इसमें, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो है हम df.head हमने कर दिया, ठीक है। df.head मतलब प्रिंट df.head से क्या होता है, फिर से हमने देखा थोड़ा वैल्यूज प्रिंट करा के, ठीक है। फिर df.conversion वैल्यू काउंट, इसे अभी के लिए इग्नोर कर देते हैं बिकॉज यू हैवंट लर्नड, ठीक है। इसमें बाकी तो थोड़ा एडवांस्ड वर्जन है, बट कुछ कुछ चीज़ें ना पांडास की काफ़ी यूज़ होती हैं, पांडास काफ़ी जगह यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। यू कैन सी काफ़ी जगह हम यूज़ करेंगे पांडास, ठीक है।
डी एफ डॉट हेड 99, हमें पूरी रोज देखनी है तो हम ये लिखेंगे डी एफ डॉट हेड। ठीक है। ये वाला किस लिए यूज होता है? ये वाला फिलहाल के लिए भी कैन स्किप। आई डोंट नो व्हाई इन योर मॉड्यूल इट्स ऑलवेज सो बेसिक एंड बट इन रियल लाइफ इन द प्रोजेक्ट एंड ऑल मुश्किल मुश्किल प्रोजेक्ट्स होते हैं, बट इन द योर मॉड्यूल इट्स ऑलवेज वेरी इजी। या तो ये डिटेल्ड मॉड्यूल नहीं है, पता नहीं क्या। सो वैसे सेम वे में हमारा ये वाला होता है, जैसे मैंने पांडास मैंने खुद ही डेटा बनाया, ठीक है, मैंने उसका फिर क्या किया, मैंने इधर डेटा फ्रेम बना दिया। ठीक है, एक बार मैंने डेटा फ्रेम बना दिया इधर, फिर उसके बाद मैंने प्रिंट कराया। ठीक है, उसके बाद आके देखते हैं, मैंने डी एफ डॉट हेड किया, तो डी एफ डॉट हेड करके मतलब अगर मैंने यहाँ खाली छोड़ दिया है डी एफ डॉट हेड के अंदर, तो पहली 5 रो प्रिंट होके आ जाएंगी। अगर मुझे यहाँ लिखना है, अगर मुझे पहली 10 रोज प्रिंट करानी है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे डी एफ डॉट हेड के अंदर 10 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे पहले 10 रोज प्रिंट होके आ जाएंगे। उसके बाद जो है आगे चलते हैं, डी एफ डॉट डिस्क्राइब। ये भी एक फंक्शन होता है पांडास का। डिस्क्राइब का मतलब होता है वो आपको ऐसा पूरा बना के देता है, जो आपका डेटा है, जो आपका डेटा है उसका वो आपको काउंट बता देगा कि कितनी रोज हैं, मीन बता देगा आपको। ठीक है, ये देखें दोनों अलग अलग कॉलम्स का अलग अलग मीन होगा ऑब्वियसली। स्टैंडर्ड डिविएशन बता देगा, मिनिमम बताएगा, मिनिमम वैल्यू क्या है इंग्रेडिएंट्स में। कुकिंग टाइम मिनिमम किसका है, 7 है, 7 मिनट्स है किसी का कुकिंग टाइम। ठीक है, आपको बताएगा कि आपके डेटा का 25% कितना है, 50% कितना है और 75% कितना है, आपको मैक्स भी बताएगा। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली स्टार्ट्स आनी चाहिए थोड़ा ये समझने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं, ये तो मैटप्लॉटलिब से हो रहा है, और क्या क्या चीज़ें हैं, और तो ऐसा फिलहाल कुछ नहीं है, लेकिन काफ़ी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। तो पांडाज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने पढ़ा क्या, हम एक बार वो देख लेते हैं। क्योंकि हम ज़्यादा ऊपर आ गए। सो पांडाज होती क्या है, पांडाज इज अ पाइथन लाइब्रेरी दैट इज यूज टू वर्क विद डेटा। ठीक है, वी कैन वर्क विद एक्सेल शीट्स, एनी फाइल्स। ठीक है, एनी डेटा, एनी फाइल वी कैन वर्क विद इट। ठीक है, होता क्या है, पांडाज हेल्प यू टू स्टोर डेटा, क्लीन डेटा, एनालाइज डेटा एंड मॉडिफाई डेटा। ठीक है, वाई डू वी नीड पांडाज, पांडाज यूज करके हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे ये टेबल दी हुई है, नाउ वी वुड कॉल इट अ डेटा फ्रेम। तो ये डेटा फ्रेम में हम क्या करेंगे, हम एवरेज मार्क्स ढूंढ सकते हैं, हम स्टूडेंट्स ढूंढ सकते हैं जिनके मार्क्स 80 से ऊपर हैं। ठीक है, हम न्यू कॉलम ऐड कर सकते हैं, डिलीट रो कर सकते हैं, ये सब बहुत आसान होता है। ठीक है, पांडास में जैसे हमने ये बनाया, अब हम देख रहे थे पांडास में डेटा फ्रेम बनाते कैसे। तो डेटा फ्रेम पहले हम सीरीज का देखते हैं, बेसिक डेटा फ्रेम ऑपरेशन। वेट, वेयर इज द सीरीज पार्ट, आई थिंक आई डोंट नो वेयर द सीरीज पार्ट है। बस सीरीज कैसे बनाते हैं, सीरीज में हम लिखते हैं ओके, यहाँ लिखा होगा डी एफ डॉट सॉरी, हाँ पी डी डॉट सीरीज लिखते हैं हम, तो उससे क्या होता है, सीरीज बन जाती है। लेट मी शो यू ऊपर करके। कौन सी तो देखिए, पांडास में सीरीज कैसे बनाते हैं, हम लिखते हैं मार्क्स इज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज, और इससे क्या होता है, हमारे जो है मार्क्स मार्क्स बन जाते हैं। ठीक है, मतलब सॉरी मार्क्स के लिए सीरीज बन जाती है। ठीक है, तो हमें यहाँ सीरीज मिल गई। ठीक है, एक, तो सीरीज कैसे बनाते हैं, बेसिकली सीरीज क्या होता है, एक टेबल का एक कॉलम, कोई एक कॉलम टेबल का होता है, वो कहते हैं सीरीज। ठीक है, सीरीज अलग से भी तो हमारी ये सीरीज है। ठीक है, हमने प्रिंट कराई सीरीज, तो हमारी सीरीज आ गई। ठीक है, उसके बाद जो है हम आगे बढ़ रहे हैं, अब हम डेटा फ्रेम लिखते हैं। डेटा फ्रेम कैसे बनाते हैं, पहले तो हम डेटा लिखते हैं। ठीक है, ऐसे डिक्शनरी फॉर्म में हम लिख देते हैं डेटा हमारा सारा। ठीक है, फिर हम लिखते हैं डी एफ इज इक्वल टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम ब्रैकेट में डेटा। ठीक है, तो ये डेटा पास कर देते हैं पूरा, तो फिर हम हमारा डेटा फ्रेम बन जाता है एक डी एफ नाम का। ठीक है, फिर हम उसे प्रिंट करा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, डेटा फ्रेम के ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं। सबसे पहले होता है व्यू डेटा, दिस इज वेरी सिंपल एंड यू विल ऑलवेज 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 यूज इट। ठीक है, तो इसमें हम लिखते हैं डी एफ डॉट हेड,
और तो इसमें हम क्या होता है, इसमें फर्स्ट 5 रोज आ जाती हैं प्रिंट होके, ठीक है। हम डी एफ डॉट टेल लिखेंगे तो लास्ट 5 रोज आ जाती हैं प्रिंट होके। उसके बाद हम लिख रहे हैं डी एफ डॉट शेप, तो इससे क्या होता है, रोज और कॉलम्स हमारा मतलब बस ये बताता है कि रोज क्या है और कॉलम्स कितनी है। एक्सेसिंग कॉलम भी हम कर सकते हैं इसमें, ठीक है। एक्सेसिंग एक्सेसिंग रोज भी कर सकते हैं, डीएफ डॉट लॉक यूज करते हैं, ठीक है। जीरो लिखोगे तो ये फर्स्ट रो बता देगा, मतलब, ठीक है। ये जीरो इंडेक्स दे रहे हैं, ठीक है। तो लॉक क्या होता है, लॉक इन pandas इज यूज टू एक्सेस डेटा बाय नेम, ठीक है। ठीक है, और मर्ज का मतलब होता है ज्वाइनिंग टू टेबल्स यूजिंग अ कॉमन कॉलम, ये सब हमने देखा, ठीक है। एक हमने देखा था कॉनकैट। कॉनकैट का मतलब क्या होता है कि दो दो टेबल्स को मर्ज करना, ठीक है। लेकिन इसमें रूल क्या होता है, कॉलम नेम सेम होना चाहिए। देखिए ए बी और ए बी कॉलम नेम सेम है, ठीक है। तो जब दो टेबल्स हैं उनके कॉलम नेम सेम है तो हम उन्हें मर्ज कर सकते हैं यूजिंग पी डी डॉट कॉनकैट। लेकिन आपको अगर मतलब ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर मर्ज मर्ज यूज करना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि दोनों टेबल्स में सारे कॉलम सेम हो तो कोई तो भी अच्छा है। लेकिन कोई एक कॉलम तो सेम होना ही होना चाहिए, ठीक है। अगर मिनिमम एक कॉलम सेम होना चाहिए, ठीक है। तो उसके उसकी मदद से हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ देखा काफ़ी चीज़ें, ठीक है। सो इफ़ यू वांट आई कैन शेयर द कोड विद यू ऑल्सो। इतना कुछ है नहीं लेकिन फिर भी, एंड लेट्स, आई थिंक वी आर डन विद दिस मॉड्यूल 2.9। लेट मी सी आगे क्या है, बिकॉज आई थिंक कि आपका जो सिलेबस है और जो आपके मॉड्यूल्स में है वो थोड़ा सा है, लेकिन जब आप प्रोजेक्ट करते हो ना तो आपको काफ़ी और चीज़ों की भी रिक्वायरमेंट होती है। या तो ये लोग पढ़ाते नहीं और चीज़ें, ठीक है। ये लोग, मुझे लगता नहीं ये लोग पढ़ाते हैं और चीज़ें, बिकॉज क्योंकि मैंने बहुत सिंपल सा प्रोजेक्ट करके दिया एंड दे गेव यू 10, राइट। सो वही है कि ये लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। तो हमारे पाइथन लाइब्रेरीज खत्म हो गई हैं। पाइथन में भी एक टॉपिक बचा है, उसे कहते हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, तो होपफुली विल डू दैट टुमारो, और विल डू इट सम अदर डे। एंड कल, ओके, कल तो टेस्ट है, ओके, टुमारो इज द टेस्ट, तो प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। लेट मी जस्ट सेंड यू। तो कल टेस्ट है, तो कल टेस्ट के लिए प्रिपेयर होके आएगा। इट विल बी वेरी बेसिक बट टेस्ट आर रियली इंपॉर्टेंट, कि पता चले कि आपको याद है कितना, प्रैक्टिस है, थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत करनी पड़ती है। एंड लेट्स सी मॉड्यूल 2.10 में क्या क्या है। ओके, टेस्टिंग द मॉडल। आई डोंट नो वाई आपके कॉलेज वाले ऐसा क्यों करते हैं, इतनी डिटेल में चीज़ें पढ़ने की होती हैं, वरना आप प्रोजेक्ट कर ही नहीं पाओगे अगर आप डिटेल में चीज़ें नहीं पढ़ोगे, ठीक है। आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए। ओके, साइपाई भी है इसमें, मैटप्लॉटलिब भी है, सीबॉन भी है। ओके, आई डेंट टीच दिस, सो अब आगे ये पढ़ाऊंगी, मैटप्लॉटलिब, साइबॉन और ये सब, ठीक है। सो मतलब मुझे ये समझ नहीं आता आपके कॉलेज वाले से क्यों करते हैं कि इतना डिटेल में चीज़ें हैं, ठीक है, बट आपको वो बहुत थोड़ा ही पढ़ाते हैं, ठीक है। लाइक दैट इज़ वेरी अनफेयर। मतलब आपके मॉड्यूल में इतने बड़े बड़े टॉपिक्स लिख रखे हैं ना कि एक टॉपिक पढ़ाने में 1 हफ्ता स्पेंड कर दूँ ना वो भी कम है। लेकिन आपके जो है या तो टाइम नहीं है, या तो जो है मतलब मॉड्यूल्स इतने सारे हैं, और मॉड्यूल 2 पर मतलब थर्ड मॉड्यूल भी दे दिया। लाइक समझाने के लिए सही है, मतलब मैं समझा सही रही हूँ, लेकिन जब आप कभी प्रोजेक्ट करोगे ना, जैसे प्रोजेक्ट्स जो आपके आ रहे हैं, ठीक है, जैसे जो आपका अभी मतलब जो प्रोजेक्ट अभी मैंने करके दिया, वैसे प्रोजेक्ट जब आप करोगे ना तो उसके लिए आपको डिटेल में समझना पड़ता है। तो आपके उसके लिए ना, मतलब ये सब जो टॉपिक्स है ना, जो ये आपको मैं 2-3 महीने में पढ़ा रही हूँ, ये मैंने 1.5 साल में पढ़े ये सारे टॉपिक्स अच्छे से। मास्टर जो करते हैं ना इंसान, वो 1.5 साल में, मतलब टाइम बहुत लगता था मुझे तो, बिकॉज ये बहुत डिटेल में पढ़ाए जाते हैं हर जगह। तो मैंने तो यूट्यूब से ही किया था, पढ़ा था, तो उसमें एक तो मैं कंसिस्टेंट ज़्यादा नहीं थी, लेकिन मुझे 1.5 साल लगा था, नॉट बिकॉज आई वॉज नॉट वेरी कंसिस्टेंट, बट ऑल्सो बिकॉज ये सब बहुत डिटेल में पढ़ने वाली टॉपिक होती हैं। अगर आप डिटेल में टॉपिक्स नहीं पढ़ते हो तो नुकसान क्या होता है आपको, लाइक थ्योरी तो आपको समझ आ जाती है मशीन लर्निंग की, बट जब आप उसे अप्लाई करने जाते हो तो आपको डिटेल में पता होना चाहिए, वरना मुश्किल होता है, ठीक है। कोई भी चीज़ आप डिटेल में नहीं पढ़ोगे तो आप प्रोजेक्ट नहीं कर पाओगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपके कॉलेज वाले बहुत ही इजी, मतलब मॉड्यूल में बड़ी बड़ी टॉपिक्स भर दिए हैं और मुश्किल मुश्किल प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं, लेकिन उस लेवल का मतलब मॉड्यूल में उतना
मॉड्यूल में टॉपिक का नाम ले रहे हैं, लेकिन वो टॉपिक उतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहे, वो चीज़ थोड़ी कमी रह जाती है। बट खैर, दिस मॉड्यूल 2.9 इज डन, वील स्टार्ट टुमारो। पहले तो कल टेस्ट होगा, उसके बाद वील प्रॉब्ली डू पाइथन का एक टॉपिक, लेट्स सी। ठीक है, बाय बाय।